Not always a woman is right. पहले शादियां इसलिए चलती थी क्योंकि औरतें चुप रह के सह जाती थी। कि शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा है, पेशेंस है ही नहीं। दोस्त बने, मैरिज हुई, 2 साल बाद मैरिज टूट गई। शादियां टूटती हैं आजकल तो किसी भी वजह पर टूट रही हैं। तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। जहाँ शादी नहीं करनी वहाँ पे उसको शादी करनी पड़ती है, बिकॉज दैट एज इज गोइंग। बीइंग टुगेदर बिफोर मैरिज एंड बीइंग टुगेदर आफ्टर मैरिज बहुत चेंज है डायनामिक। क्या आपने 30-35 जो डिवोर्सेस के केस आपने ये सेटल करे हैं, सब में गलती मेंस की थी? नहीं, इट्स नॉट दैट। मेरे बाप ने शादी में 5 करोड़ लगाए हैं, मैं घर का काम नहीं करूंगी। लॉ भी कहीं ना कहीं डिवोर्सेस को बढ़ावा दे रही है। जितनी सीरियल्स आते हैं, हर सीरियल में डिवोर्स मिलेगा। आज इस एक्टर ने डिवोर्स लेके दूसरी शादी कर ली। रिलेशनशिप बिल्ड करने में आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों से नहीं होता है। आपको इंसान को एक इंसान में इन्वेस्ट करना होता है, अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपनी फीलिंग। A successful marriage is the world's best support system. It nurtures individuals, builds families, and sustains societies. Today, we'll be talking on a theme, changing landscape of marriage and relationships in India. Breaking tradition, a silent rebellion against marriages in India. We'll be also talking how marriages are important in different religions and traditions versus modernizations. Welcome to another episode of the Knick-Knack Show. Today we have in our studio a very special guest, a legal expert, and who has been at the forefront of navigating the complexities of modern relationships, marriage laws, and family disputes in India. Joining us today is Ishita Sharma, founder of Fathom Legal, advocates and corporate consultants. She's a distinguished lawyer specializing in family law, marital disputes, and emerging legal aspects of live-in relationships and personal rights, with extensive experience in handling cases related to marriage, divorce, and personal relationships. She has been instrumental in analyzing how our laws are adopting to the change in societal matters. So without further ado, let's welcome Ishita Sharma ji. Ishita ji, welcome to the Knick-Knack Show. Thank you so much. It's an honor to have you here, all the way from Mumbai. Okay. Thank you so much, Ankit ji, for having me here. And I'm very excited that, this topic of marriage and relationship has been on the cornerstone of the society for a very long time. And today we are going to have a discussion about how people are now adapting and understanding the changes in the level of commitments, the social construct around marriage, right? And how the modern society is reacting towards it. Right. So, for the maximum amount of time, we know that marriages have been the basic bedrock of the society, right? Like we understand, and we also understand that it's a social construct which has been built कि लोगों को कैसे साथ में रखा जाए और एक सामाजिकता बनाई जाए ताकि अजारकता घटे, if that's a word, अजारकता। तो ये सब देखते हुए हमें अब आज का करंट इकोसिस्टम शायद बहुत सारी बातों में सब्सक्राइब करता है, बहुत सारी बातों को सब्सक्राइब नहीं कर पाता है। तो वही हम समझेंगे आज, आपके सवालों का जवाब दूंगी, कोशिश करूंगी कि हम तो अपनी ऑडियंस को बता देते थे, हमने तो आज तक यही सुना है कि शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। और आज की जो जनरेशन है वो ना तो उस लड्डू को देखना चाहती, ना उसको टेस्ट करना चाहती, तो वो उस लड्डू से बहुत दूर चली गई है। क्योंकि ऐसी चीज़ें, डिवोर्स केसेस है, एलिमनी बोलते हैं ना, एलिमनी है, डिवोर्स केसेस है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, ये सब देख के इसका एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्या उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? आज बहुत हमको अपने मेल वर्क से सुनने को मिलता है दैट मैरिजेस टूटने की वजह यह है कि औरतें पढ़ लिख गई हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ हाँ, औरतें पढ़ लिख गई हैं, सही बात है। अब उनको अपने हक के बारे में पता है, अब वो चुप नहीं रहती हैं, अब वो इन कमांड ऑफ देयर लाइफ हैं, अब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, अब वो इमोशनली मेंटली मैच्योर है, अब वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी में है। तो हाँ, अब वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं और अब वो चुप नहीं रहती। तो क्या
पहले शादियां इसलिए चलती थी क्योंकि औरतें चुप रह के सह जाती थी, या अब अगर वो बोलने लगी हैं, समझने लगी हैं, तो अभी भी औरतों की ही गलती है? राइट। ठीक है, दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, हमने फ्रॉम द पास्ट हमने देखा कि women हैव बीन, उन लोगों को एक पर्टिकुलर तरीके से ब्रॉटअप किया जाता है. मेरे को भी ब्रॉटअप करने की बहुत कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर वे में रहो, कुछ चीज़ें तुम्हें करनी ही पड़ेंगी, ये तुम्हारी ही जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. हमें तो एक पर्टिकुलर मैनर में गवर्न किया जाता है. क्लास 5, 6, 7 से ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, ये कॉमन ट्रेंड है इंडियन हाउस होल्ड्स में. कभी अपने भाई के लिए तो ये नहीं सुना कि बीवी आएगी तो ऐसे रहोगे क्या, ऐसे नहीं सुना. वो तो आएगी तो सब कर ही लेगी. सो आई थिंक फ्रॉम देयर हम लोग जो इवॉल्व हुए, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का कॉन्सेप्ट आया, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जो कि बहुत तरीकों से इंटरप्रेट हुआ. सो वुमेन हैव नाउ कॉट अप, जो उनका छूट रहा था, जहाँ वो सप्रेस हो रही थी, जो नॉलेज गैप था, जो इकोनॉमिक गैप था, वो सबसे उन्होंने काफ़ी हद तक कॉट अप कर लिया. एजुकेशनल गैप था, सब पे कॉट अप कर लिया है. अब जब कॉट अप कर लिया है, so now men don't know how to deal with these women. They have strong opinions, they have rationality, they have logic to talk to, and now men don't know how to deal with it. कुछ एजुकेशन लेवल भी जिस हिसाब से एजुकेशन लेवल भी एट पार हो गया है कि पहले कहते थे कि फीमेल को नहीं पढ़ाना ज़्यादा, 12th के बाद शादी कर दो. अब अगर वो ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, तो एक चेंज ऑफ मेंटालिटी, चेंज ऑफ बिहेवियर, ये चीज़ आ रही है. जैसे इक्वालिटी आ रही है. इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है. पहले फेमिनिज्म से ये किक ऑफ हुआ, वी वांट इक्वालिटी. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, what is it that a woman is asking for? Equal opportunity to work, right. Equal pay, right? Equal respect at the workplace, right? Equal options to exercise their rights. This is what it is the actual definition of equality in terms of feminists. Right. And when we're saying equality, we're not saying that we want to lift equal weights or fight the same physical battle that a man can, which हम लोग possibly नहीं कर पाएंगे. We are shaped differently. We fight mental battles in a very different manner where a man cannot. Like we know, a woman is governed by feminine energies which are flowing, whereas a man is governed by other masculine energies that we go back to the ancient time of a provider, right? So वहाँ से ये सारे concepts flow होते हुए आ रहे हैं. But अभी जहाँ कहीं पे भी आकर के choco block बन गया है, more and more men are becoming feminine, more and more women are becoming masculine. Are you aware of this trend? No, not at all. Okay. ये हमारी प्लीज एक ऑडियंस को बता दीजिए ये ट्रेंड. So the problem that a lot of independent women are facing is कि उनके पास उनको नहीं मिल रहे हैं अपने बराबर से मैचिंग एनर्जी वाले लोग, अपने बराबर से मैचिंग इंटेलेक्ट वाले बॉयज. अपने women have now become so masculine that men around them are not masculine enough. उनको वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं फील होता है. अब उससे लगता है इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँगी. उनको नहीं लगता है that he would be able to provide me enough going to the traditional definition. So this is a major shift. आजकल boys जितना टाइम पार्लर्स और क्लेंजिंग में स्पेंड कर रहे हैं, उससे कई ज़्यादा टाइम उनको जिम में स्पेंड करना चाहिए था. पुराने ज़माने में शायद ये सब नहीं होता था. So this is one of the major reason that masculinity has tremendously declined. In men, and masculinity has tremendously taken an upshape in women. शादियाँ टूटती है, एक तो आपने एक रीज़न बता दिया फेमिनिज्म, और बहुत मल्टीपल रीजन, और कुछ हमारी जो लॉज है उन लोगों का भी एक बहुत बढ़ावा है आजकल डिवोर्स केसेस में या फैमिली डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं. कितना किस लेवल तक मिसयूज होता है वो. Okay. आप तो एक यू आर अ लीगल एक्सपर्ट ऑल्सो, लीगल प्रोफेशन, तो आप तो इतने सारे केसेस डेली की डेली डील करते हैं. नॉट ऑलवेज अ विमेन इज राइट. करेक्ट. क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे आप? सो आई सी दैट देयर आर 2 क्वेश्चंस. मैं एक एक करके आंसर करती हूँ. वाई शादियाँ टूटती क्यों हैं, क्यों टूट रही हैं, पहला सवाल ये. और दूसरा, अगर वो टूटने की तरफ जाती हैं तो क्या हमारे लॉज किस तरीके के बने हुए हैं, क्या वो विमेन सेंट्रिक हैं, क्या उनका मिसयूज़ होता है. करेक्ट. शादियाँ टूटती हैं आजकल तो किसी भी वजह पर टूट रही हैं. पहले लोग वजह ढूंढते थे कि कैसे इसको चला ले जाए. अब इनटॉलरेंस इतनी ज़्यादा है, पेशेंस है ही नहीं. वाई ऑलवेज मी, वाई नॉट यू. तो ये कहीं जो आप कहते हैं इक्वल एजुकेशन जो मिली है, तो वहाँ पे एक सेक्रीफाइसिंग नेचर जो था पहले वुमेन का, वो दैट इज बीइंग
diminished? It will be now, because now women are not looking for providers. You cannot provide me a house, you cannot provide me food, you cannot provide me shelter. वो है मेरे पास. बट वो है अल्टीमेटली हमारे उसका पास. आउटकम क्या हो रहा है? उसका जो आउटकम होता है वो डिस्प्यूट होता है या डिवोर्स होता है? उसका आउटकम बच सकता है. वो शादियां बचती हैं जहाँ पे मैन अपना रोल समझता है कि उसका रोल एक पार्टनर का है. वुमेन आर नाउ लुकिंग फॉर पार्टनर्स, गुड कंपेनियनशिप, जिनसे वो हर तरीके की बातें कर सके, समझ सके उनकी बातों को. ठीक है, वो जो पार्टनरशिप होती है, जो कपल पहले से दोस्त होते हैं या शादी में भी अपने दोस्ती पहले बना के चलते हैं, उसके बाद ये शादी का ओहदा और रिश्ता निभाने चलते हैं, वो उसकी सैंटिटी को मेंटेन करके सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे औरत को बराबरी मिलती है. ठीक है, दोस्त हमेशा बराबरी में ही बनते हैं, उसमें ना ऊपर होता है ना नीचे होता है. नहीं, ऐसे भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो लव मैरिज जिसको हम बोलते हैं कि दोस्त बने, मैरिज हुई, 2 साल बाद मैरिज टूट गई. बहुत 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 मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस मैंने ऐसे देखे. पीपल फ्लिप कंप्लीटली, क्योंकि यू नो बीइंग टुगेदर बिफोर मैरिज एंड बीइंग टुगेदर आफ्टर मैरिज बहुत चेंज है डायनामिक्स में. क्योंकि पहले वो ट्रीट करता था कि एज अ फ्रेंड, एज इक्वल, लेकिन वो पोस्ट मैरिज जो एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था उसको, वो ट्रीटमेंट नहीं मिला. इसका रीज़न एक बहुत बड़ा है. मदर ऑफ द ग्रूम एंड मदर ऑफ द डॉटर, दोनों को ही अपनी बाउंड्रीज नहीं पता. दोनों ही अपने परिवार, अपने बच्चों के परिवार में इतना ज़्यादा इंटरवीन्ड रहते हैं, इतना कंसर्न रहते हैं कि वो पूछ के अपने ओपिनियंस दे के, सजेशंस दे के, दे इवेंचुअली एंड अप ब्रेकिंग द मैरिज. अगर आप यही 2 लोगों को अकेला छोड़ दो, चांसेस कि वो अपने डिस्प्यूट्स ना रिजॉल्व कर पाए ये बहुत ही मैं अपने एक ऑडियंस के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा. बच्चों की शादी अगर डिवोर्स तक पहुँच गई है और डिवोर्स को चाहते हो कि डिवोर्स ना हो, 1 महीने तक उनसे फ़ोन पे बात मत करना. अपने मोबाइल्स, उनका नंबर डिलीट कर देना 1 महीने तक. 90% चांस है कि आपके बच्चों का डिवोर्स रुक जाएगा. और ये अजमा के देख लेना ये चीज़. ये आपको कोई लॉयर नहीं बताएगा. एक एक्सपर्ट है ना जो डेली इतने सारे केसेस टैकल करती है, ये उनका एक्सपीरियंस बता रहा है आज. तो नोट कर लो इस चीज़ को. जो इंटरफेरेंस है ना, स्पेशली मदर्स, वो इंटरफेरेंस आप 1 महीने के लिए छोड़ के देख लीजिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी. इशिता जी प्लीज़. बॉयज़ की शादी कर देते हैं बट मदर डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाती. लड़कियों को भेज देती हैं बट ऑलवेज ओवर कंसर्न रहती हैं, क्या हो रहा होगा. सुबह सुबह लड़की फ़ोन शादी करके आती है, मदर का फ़ोन आता है 8 बजे, नाश्ते में क्या बनाए. हाउ डू यू केयर, आपसे क्या मतलब. और कुछ ऐसे केसेस भी सुनने में आते हैं इशिता जी कि आज तो मुझे ये खाना था, बना कुछ और है, मेरी सास को फ़ोन करके बोल दो कि ऐसे नहीं चलेगा. तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी की कैसे बात हम कर सकते हैं जब इतनी इंटरफेरेंस हो जाती है. मतलब इट अप्लाइज टू बोथ द साइड, ब्राइड एंड ग्रूम, या जिसको आप हस्बैंड एंड वाइफ बोलते हैं. तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी कैसे मेंटेन हो. सो ऑलरेडी देखिए, हम अगर एनिमल किंगडम देखें, चलो बात करते हैं, थोड़ा मैक्रोस्कोपिक बात करते हैं. अगर हम उनके यहाँ तो डिवोर्स ही नहीं हो सकते ना, वो तो बेचारे बेजुबान. एनिमल किंगडम देखें, बेजुबान हमारे लिए है, आपस में तो नहीं है ना. अगर हम एनिमल किंगडम देखें, कमिटमेंट का कोई रोल नहीं. ठीक है, पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं लोग. ठीक है, आपस में एक कमराडरी बनी हुई है, एक सिस्टम है, उनका भी एक सिस्टम है, उनकी भी फैमिलीज होती हैं, हमने देखा है. अब जब आ जाते हैं ह्यूमंस के बारे में, तो हमारे पास एक दिमाग है, हमारे पास सुपीरियर कॉन्शियसनेस है. हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके यूज़ करने में ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं कि हम तो ये तुच्छ प्राणियों से बड़े हैं. तो अगर उतनी समझ है तो बाउंड्रीज डिफाइन करना भी आना चाहिए ना बेसिकली. एंड अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं करता है फॉर वट एवर रीजन्स, तो वो मैरिज कंपैटिबिलिटी से तो ऑलरेडी बहुत दूर जा चुकी है. आज की डेट में एक मोस्ट एलिजिबल ग्रूम और ब्राइड ढूंढना, जब आप इतने बड़े हो चुके हो, इतने मैच्योर हो चुके हो, आपको दुनिया की सब सच्चाइयाँ पता है, आपने खुद बहुत कुछ देख लिया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद अगर आप जाके कहीं सेटल हो रहे हो किसी के साथ, and then parents come in, you need to understand that your kids are not kids anymore. They have decided to get married and they have decided to start a life of your own. Let us understand marriage का purpose क्या है. मैरिज का पर्पस साथ में रह के प्रोक्रिएट करके लीनियज आगे बढ़ाना होता था ट्रेडिशनली. हर चीज़ की डेफिनेशन चेंज होती जा रही है ओवर द ईयर्स. बहुत सारे मैरिड कपल्स, हेल्दी कपल्स, दे आर नॉट चूजिंग टू गिव बर्थ टू बेबीज. आई नो वेरी डियर. ऐसा ये ट्रेंड ऐसा क्यों आ रहा है? ये ट्रेंड नहीं है. इट्स अबाउट
कुछ लोग इसको अवेकनिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको इंडिविजुअल चॉइस कहते हैं। कुछ लोग को गिल्ट है कि ये दुनिया वैसी बची नहीं कि मैं एक नया जीव लाऊं और उसको भाई मैं ये संसार में लेकर के आऊं। आप देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं इसके। आप जब बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे तो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, वो करे या नहीं करे। तो वो तो सेल्फिशनेस है ना वो पेरेंट्स। आप देखिए, दोनों चीजें होती है इसमें। एक सेल्फिशनेस बोल दिया आपने, इसका दूसरा पहलू ये हो गया, आज किसी को चोट लग गई या आपका बिजनेस है, कौन संभालेगा उसको? आप किसके लिए कर रहे हैं? फिर तो जॉब कर लीजिए, एक छोटी मोटी जॉब कर लीजिए। अल्टीमेटली ये एक पास ऑन होता रहता है एक जनरेशन में। हम कहते हैं ना कि हम लोग ये जनरेशन है, हम 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन। वो इसलिए तो कह पाते हैं कि वो पीढ़ियाँ आगे बढ़ती चली आ रही है। आप अगर उस पीढ़ी को ही रोक देंगे तो उससे क्या हासिल कर लेंगे? ये क्षमता है इस जनरेशन में करने की। हम लोग, या हमारे से 10 साल आगे या 10 साल पीछे, जब मैं हम लोग की बात करती हूँ, मेरे से ऊपर जब चले जाएं, वो जो 41, 30, हाँ 40s वाली रेंज में जो लोग हैं, मैरिज का फैब्रिक वहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ। ठीक है, हम लोग, हमारी जो जनरेशन है अर्ली 30s में, लेट 20s अर्ली 30s में, हम लोग तो स्टिल हेजिटेंट है, नहीं करेंगे। वो लोगों ने क्या किया, करके गड़बड़ कर दिया, नॉट एबल टू रन अराउंड, नॉट एबल टू मैनेज थ्रू इट। जो मिड लाइफ क्राइसिस उन लोग को सडनली हिट किया, हम लोग उस क्राइसिस में जाने से पहले ही बच गए। हमारे से पहले वाले तो कंप्लीटली नॉन कमिटेड है, उनको तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, शादी जानते ही नहीं है, करना ही नहीं है। दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर दैट रीजन। क्यों? कमिटमेंट किसी को देना, इट इज बियॉन्ड थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड किसी को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना, ये थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाता है। अब की जो जनता है वो सेल्फिश हो चुकी है, सेल्फिश हो चुकी है, बट वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, बट वो खुद को प्रायोरिटी पे रखती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। पहले क्या होता है, इमोशनल डिसीजंस होते थे। ये सारी जो आपने बातें करी थी, आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है, चाहिए एक पार्टनर चाहिए जो आपको, आदमी परेशान भी होगा तो आपको इमोशनली स्टेबल भी तो कर सकता है ना। पीपल आर रोमिंग अराउंड लाइक ज़ॉम्बीज। इमोशंस की बात करते हैं आप, क्यों नहीं चाहिए? वो पार्टनर की कमी इसलिए अब खत्म हो रही है, लोग नॉन कमिटल हो चुके हैं। उनको पता है जो वो देना चाह रहे हैं और जो वो सीख कर रहे हैं सामने वाले से, वो ना वो दे सकते हैं, इसलिए उनको मिलेगा भी नहीं, ना ही उनके अंदर पात्रता है उसको रिसीव करने की। पीपल आर रोमिंग अराउंड लाइक zombies, they don't have the souls to go on and commit। मतलब आपने इनको ज़ॉम्बी बोल दिया? zombies हैं, और मेरी जनता जो ये वॉच कर रही होगी वो अग्री करेगी इस बात से, जो मेरे एज ग्रुप में है वो अग्री करेंगे इस बात से। तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई बहुत ही पर्सनल सब्जेक्ट है, ये चीज तो आपको बताना पड़ेगा। चाहिए, मेरे ख्याल से तो करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए मेरे हिसाब से भी। मैं रिसेंटली मैं NIT सूरत कल गई थी, तो वहाँ पे भी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही थी, तो वहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने बाद में आके पूछा, मैम अकॉर्डिंग टू यू आपकी तो शादी नहीं हुई है, बट आपके हिसाब से, मैंने मजाक में कह दिया 30 से पहले शादी मत करना, बट बाद में मैंने जब नहीं, अच्छा आप एक चीज बताइए, पहले शादी होती थी 21 साल, 22 साल, 23 साल, सही, जब तक आपकी एक ग्रेजुएशन हो चुकी होती थी। मतलब 22 इज इन ऑप्टिमम एज वेयर अ गर्ल शुड गेट मैरिड। अब ये जो एज है ये 22 से 32 या 35 हो जाती है। करेक्ट। वो जो 10 साल है ना, वो डिवोर्स का कारण भी है। डिवोर्स बहुत केसेस में अभी रिसेंटली 10 साल के अंदर जो डिवोर्स के जो कारण जो बने हैं ना, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट वो बढ़ गई है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू मोबाइल। पहले इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं थे, अप्रोचेबल है बहुत। अब क्या है, मदर फोन करती है, वही जैसे आपको बताया 7 बजे, क्या बनाया बेटा खाने में, अच्छा ये बनाया, मैं बात करती हूँ तेरी सास से। पहला कारण। दूसरा कारण, मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा 30 साल के प्लस। अरे तू 30 साल के प्लस जब शादी कराएगा, जब तक देखने जाएगा तब तक उसकी एज 35 साल हो चुकी होगी, और कुछ केसेस में शादी नहीं होती, और मजबूरी में जहाँ शादी नहीं करनी वहाँ पे उसको शादी करनी पड़ती है, बिकॉज दैट एज इज गोइंग अप एंड अप। उसके पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि यार अब तो जो मिले कर लो। वो एक केस बनता है डिवोर्स का। तीसरा एक और जो एक सबसे मेजर जो केस अभी जो देख लिया, मेरे बाप ने शादी में 5 करोड़ लगाए हैं, मैं घर का काम नहीं करूँगी, मेरी सास ने बोला कि ये सामान वहाँ रख दे, वो नौकर रखेगा, वो मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मेरे बाप ने 5 करोड़ लगाए हैं। ये एक ट्रेंड हमारे नॉर्थ इंडिया में, ये आपके वेस्ट में नहीं है ट्रेंड, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में इतना ज़बरदस्त एक ट्रेंड है ये कि मेरे बाप ने पैसा लगाया है, मेरा बाप और पैसा लगा देगा, मैं घर का काम नहीं करूँगी। आप जब किसी न्यू मेंबर को घर में लेकर आते हैं, वो आपका एक मेंबर है। आप अपने बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा एक पेन उठा के या ग्लास
पानी का ग्लास उठा के दे दे, तो वो भी आपका बच्चा जैसा है। अगर वो बच्चा मना करेगा तो वो पेरेंट्स का अधिकार है उसको डांटने का, और वो उस डांट को, अगर जो न्यूली मैरिड मेंबर आया है उस डांट को अगर वो ये बोले कि मेरी सास ने या ससुर ने डांटा है, वो लॉ का मिस यूज हो रहा है। जैसे आपने भी एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, सहनशीलता। वो आज की जो जनरेशन ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये पेरेंट्स को भी समझना है, जिसको शादी करनी है उसको भी समझना है, क्योंकि ये सिनेरियो अब चल रहा है। आप 2025 में बैठे हो, 5 साल बाद तो ये सिनेरियो और बिगड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि देखते रहे आप कैसे कैसे एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। लॉज की मॉडिफिकेशन तो आप बताएंगे, हाउ लॉज आर अडेप्टिंग टू दीज सोसाइटल चेंजेस। एब्सोल्युटली। सहनशीलता कम होती जा रही है, क्यों? अटेंशन स्पैन तो रहा नहीं है, रील्स देखने में व्यस्त है सब। 1 मिनट से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 मिनट की भी अब कोई रील्स नहीं देखता। तो क्विक कॉमर्स इज़ ऑन द हैंड, इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस हो गई है हर चीज़ की। पैसा भी कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा है, हाइपर डिस्पोजेबल इनकम है, कुछ लोग के पास है नहीं, डिस्पैरिटीज़ इतनी ज़्यादा है। ये एक चीज़ है, अटेंशन स्पैन नहीं है, फोकस नहीं है। ऑल हमारी जितनी भी मेंटल फैकल्टीज़ थी, कैपेबिलिटीज़ थी, वी आर लूजिंग इट कम्प्लीटली विदाउट इवन हैविंग रियलाइजेशन ऑफ इट। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप किसी के घर शादी करके जा रहे हो और उसको अपना शुरू से ही अपना घर नहीं अपना होटल समझ के जा रहे हो कि वहाँ जाएंगे वेकेशन करने, और इंस्टाग्राम में बिल एकदम एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हैं कि सुबह सुबह पति, ये कॉन्सेप्ट तो हो चुका है नॉर्थ इंडिया में, तो यही कॉन्सेप्ट है। कैसे चलेगा? घर नहीं चलता ना फिर। वैसे घर में तो इंसान को घर की तरह रहना पड़ता है, उस जगह को, वहाँ के लोगों को अपना बनाना पड़ता है। ठीक है, अपनी अपनी एक जगह बनानी पड़ती है। तो वो सब मेंटल एफर्ट वो एक औरत को ही करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज द वन हु इज मूविंग आउट, शी इज गोइंग टू अ न्यू प्लेस ऑल टुगेदर। तो वो एक मेंटल एफर्ट एक वुमन ही कर सकती है, अडेप्टेबिलिटी जिसको हम करना बोलते हैं। पड़ेगा। बट पैरेलली उसके पार्टनर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग श्योर दैट शी इज कंफर्टेबल, नॉट वो अडेप्टेबिलिटी एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा, एनवायरमेंट देना पड़ेगा उसको। उतना प्यार चाहिए होगा, वो डेजर्टेड फील कर रही होगी, लोन फील कर रही होगी, लोनली फील। इट्स अ मैग्नानिमस शिफ्ट। अकेले रहना एक अलग बात होती है, बट किसी के साथ रहना इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो वो सब भी फियर्स होते हैं। यहाँ 20 साल की अब 30 साल की उम्र से एक लाइफस्टाइल हो चुका है, आ रहे हैं, हाँ, और अचानक से वो चेंज हो जाता है। हाँ, और जैसा कि मैंने कहा था, 24-25 जितनी जल्दी शादी कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, मेरी माँ कहती है हम लोग जड़ बनते जाते हैं। हाँ, पहले के जमाने में डिवोर्स केसेस जैसे कम होते थे, वो इसलिए होते थे 22-23 साल में बहुत शादी। हाँ, मतलब व्हेन यू आर ग्रोइंग टुगेदर यू नो ईच अदर्स, एग्जैक्टली, you know both the sides of it. शायद 5 साल तो सेटल होने में लग जाते हैं। My evidence teacher Mrs. Nandini Murthy used to say, for the first 5 years the woman has to keep quiet, for the remaining all the years the man will keep quiet, if you are able to understand how to run the family and if you are able to understand कि कितना किसको क्या चाहिए, क्या पसंद है। तो पहले 5 साल sit observe, the marriage is very new, and the remaining years everyone in the family will be for you if you are able to give the initial। वो एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाता है। लेकिन आजकल तो सबसे पहले लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड बैक करना चाहिए। झूठ, लड़ाई झगड़ा, और कुछ केसेस में तो हमने ये तक देखा है कि रात को शादी हुई, रात को फेरे हुए, सुबह सुबह लड़की आई और विद इन 48 आवर्स गोली। मॉरल कंपस ही नहीं है। क्यों शादी करते हो फिर? तो ऐसे फिर तो घर वालों के पैसे भी फूंक दिए और शादी भी कर ली। अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? अपना और पेरेंट्स का। मैंने बताया ना, ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, उतना सोचने की भी शक्ति नहीं बची है अब। ओनली ड्रिवन बाय सेल्फ, मॉरल कंपस है ही नहीं। होगा किसी और से कोई अफेयर, करना होगा बिकॉज पेरेंट्स जिद कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन की भी पावर नहीं है कि अपने माँ बाप को ही अपना एक सच बता सके। मत करो, इससे बेटर तो मत करो। वो भी नहीं, वो भी स्ट्रेस झेलने की क्षमता नहीं है, दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो आप। तो अल्टीमेटली दे विल जस्ट मेस इट अप, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। फिर हमारे लॉज तो है ही महिला के फेवर में कंप्लीटली एज ऑफ नाउ। हाँ, कोई भी विमेन अगर कंप्लेंट कर देगी गलती से भी, वो 100 नंबर पे, 112 नंबर पे, जो भी आजकल नए नंबर चले हैं, उस पर अगर गलती से फ़ोन मिला दिया कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, तो पुलिस तो कहती है नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पहले इनको जेल में डालो। लॉ भी कहीं ना कहीं डिवोर्सेस को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम women have been suppressed and you will not deny it. They have faced the most kind of atrocities जो कि शायद ही आदमी को कभी झेलने मिलती है।
इवन व्हेन यू, अगर हम हीनियस क्राइम्स को भी देखें, जिस तरीके के हीनियस क्राइम्स महिलाओं के साथ होते हैं वो शायद विद इन द मेन कम्युनिटी नहीं होते. हैविंग सेड दैट, मैं एक बहुत बिगेस्ट एडवोकेट हूँ मेन राइट्स की. मैं अक्सर बात करती हूँ मेन राइट्स के बारे में. मैंने इन माई करियर, छोटा से करियर में मैंने कुछ 30-35 डिवोर्स कराए हैं. उसके बाद मेरा खुद मेंटल फ्रेम हिल गया था, तो मैंने कहा अब मैं डिवोर्सेस के केसेस. तो क्या आपने 30-35 जो डिवोर्सेस के केस आपने ये सेटल करे हैं, सब में गलती मेंस की थी? नहीं, इट्स नॉट दैट. पहली बात मतलब तो मैं थोड़ा सा रेशियो जानना चाह रहा हूँ उसका. मैंने हर सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर स्ट्रेटा से डिवोर्सेस आई थिंक फाइल किया होगा. पहले ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको सेटल करवाऊँ, मीडिएशन करा के. आई वांट टू सेंड देम बैक होम, because we've been taught in our law school that marriage is the social fabric and giving a decree of divorce by a judge is the last resort. तो अगर आप प्रोसेस देखिए, एक डिवोर्स का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, पेपर्स फाइल करते हैं, आइदर म्यूचुअल डिवोर्स फाइल होता है और कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल होता है. आइदर विच वेज एक कूलिंग पीरियड नाम के 6 महीना दिया जाता है. इवन इन म्यूचुअल डिवोर्सेज, जब कोर्ट को पता है कि ये दोनों अपनी सहमति से आए फॉर वट एवर रीजन्स, तो भी एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है, जो कि मुस्लिम लॉ में उसको इद्दत पीरियड कहते हैं. अलग अलग लॉज में मेडिएशन आप नहीं कूलिंग पीरियड मतलब 6 महीना. ट्राई अपने माइंड को ठंडा कर लो कि क्या पता वो जो फितूर है या कुछ जो हो जाए, उतर जाए, कुछ बात बन जाए. इट्स द लास्ट होप. और बहुत टाइम तक इसको भी एक्सक्लूड नहीं करते थे, बट अब क्या होता है, पेटिशंस फाइल करने से टेलिंग दैट इट इज़ अ होपलेस मैरिज और इट हैज़ कम्प्लीटली कोलैप्स, और दैट द पार्टनर्स हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर, दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड फॉर अ वेरी लॉन्गेस्ट टाइम. सो इन सब रीजंस पे फिर कोर्ट भी जो है वो 6 महीने का पीरियड भी आप वेव ऑफ करो यार. तुम जब कोर्ट के क्यों केसेस खराब, समय क्यों खराब करते हो कोर्ट का? तुम ले लो यार, जब डिवोर्स चाहिए तो ले ही लो फिर. बट मेरे साथ ठीक करता है कोर्ट भी. क्या करे जज क्या करेगा? जब जज ये थोड़ी ना बोलेगा, जज तो कहेगा बच्चों सेटल कर लो मेडिएशन के थ्रू. जैसे आपने बताया, एक टाइम पे तो जज भी बोल देता है ना कि ठीक है यार, जब तुम्हारे को करना ही नहीं रहना, तुम बाद में आओगे लड़ाई झगड़ा करके, इससे बढ़िया जाओ फिर अलग अलग. रिसेंटली चंद्रचूड़ जी ने बोला आफ्टर हिज रिटायरमेंट, इन इकोनॉमिक फोरम की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने क्लियरली बोला ओपन माइक पे कि आर इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल द फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स, स्पेशली डिवोर्स मैटर्स, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हैज कम्प्लीटली चेंज एंड द लॉ इज स्टिल नॉट अलाइन्ड विद इट. मैं यहाँ पे कहीं आपकी बात को काटूंगा भी नहीं, बट एक मॉडिफिकेशन जरूर करूंगा मैं इसके अंदर. जो चीज़ हमारे को सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है ना, जितनी सीरियल्स आते हैं, हर सीरियल में डिवोर्स मिलेगा आपको. हाँ, हर बॉलीवुड एक्ट्रेस का डिवोर्स वो सबसे ज़्यादा फ्रंट पेज पे आता है. आज इस एक्टर ने डिवोर्स लेके दूसरी शादी कर ली. आप जिसको फॉलो करते हैं, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स है, आप जो वही डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, तो आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे इसके बारे में? और वो तो बड़ा कूल होके बोलते हैं कि वो डिवोर्स बहुत चिल. सैफ अली खान का तो आपने देखा ही होगा, क्या एक मैसेज दिया उसने सोसाइटी को, डोंट टॉलरेट अ रॉन्ग पार्टनर. आप ये सोचिए, मतलब हाउ कैन यू से शी वाज अ रॉन्ग पार्टनर? ठीक है, सैफ अली खान हर हिसाब से बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो अपने पार्टनर को कुछ भी बोल सकता है, बट व्हाई द हेल द मीडिया इज टेकिंग इनटू न्यूज़? And also very one-sided news when it comes to Saif per se. That woman has not spoken much ever about their relationship. But वो समझदार है. वो समझदार है. yeah. अब आपसे कुछ आगे बात बढ़ाते हुए पूछते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स. ये एक नया नॉर्म कह लीजिए, ट्रेंड कह लीजिए. कुछ लॉज भी इसके अंदर अभी अमेंड्स हुए हैं, मॉडिफिकेशंस भी हुई है लॉज के अंदर कि भाई शादी वादी तो छोड़ो, ऐसे ही किसी को भी ले आओ जो पसंद है, साथ में रह लो, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाएगा. तो इसके कुछ सर्टिफिकेट भी बनते हैं कि जैसे एक हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है या मैरिज सर्टिफिकेट होता है, तो लिव इन रिलेशनशिप का कोई सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज़ दी है गवर्नमेंट ने? नहीं. देनी चाहिए गवर्नमेंट को. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि जैसे सोशल फैब्रिक डिक्रीज हुआ, लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप्स को ऑप्ट करना चालू किया. व्हेन यू से अ रिलेशनशिप विच इज इक्वली इन द नेचर ऑफ मैरिज बट नॉट मैरिज, दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज कॉन्टेम्पलेटेड ओवर द ईयर्स ऑफ जजमेंट्स नाउ, कि लिव इन रिलेशनशिप्स को मैरिज के बराबर का दर्जा देने की कोशिश करी गई है थ्रू वेरियस जजमेंट्स, बट ये नहीं बोला गया कि हाँ ये शादी है. शादी की अपनी जगह इंटैक्ट है.
बट दो लोग अगर अडल्ट हैं, ठीक है, दोनों का आपस में सानिध्य है, साथ में रहना पसंद करना चाहते हैं, तो बिल्कुल रह सकते हैं। इलीगल नहीं है, बस इतना ही कहा है कोर्ट ने। लीगल भी तो नहीं है, इलीगल नहीं है लेकिन लीगल भी तो नहीं है। लीगल या तो आप लीगल कंस्ट्रक्ट में नहीं आया है। मैम, लीगल कंस्ट्रक्ट में नहीं आया, इलीगल भी नहीं है, वो बीच में लटक गया। आपने एक लॉ तो बना दिया ना प्रोटेक्शन का। हाँ, प्रोटेक्शन का लॉ है, पूरा प्रोटेक्शन का लॉ है। जब आप उस चीज को लीगल करिए तभी तो लीगल प्रोटेक्शन में आता है। वो लीगल आप करेंगे नहीं। नहीं, वो तो हमारा सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट अलग है, हम उसको लीगल नहीं कर सकते, फिर तो मैरिजेस एकदम ही खत्म हो जाएंगी। मैरिजेस को बचा के रखना है, वेयर एज जो चेंजेस है उनको भी अडॉप्ट करते रहना है। तो अब क्या होता है कि जब ट्रबल्ड कपल्स आते हैं, जिनके जो अपने घर से भाग गए हैं या फैमिली के प्रेशर की वजह से जिन्होंने गिव इन कर दिया है, किसी लड़के वाले का फैमिली चेज कर रही है, लड़की वाले का फैमिली चेज कर रही है, सो व्हाट वी एज लॉयर्स डू इज प्रो ट्रिप व्हाट वी डू इज हम लोग एक अग्रीमेंट बनवाते हैं। ओके, ये अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में रहता है और एक विटनेस के सामने होता है दैट दे हैव बीन लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ये अग्रीमेंट लेकर के हम कोर्ट जाते हैं, सेक्शन 482 के अंदर रिट फाइल करते हैं और रिट के अंदर हम प्रोटेक्शन सीख करते हैं कोर्ट से कि इन लोग का ये सर्कमस्टांसेस, ये सिचुएशन है, काइंडली डायरेक्ट द एसपी और द एसएचओ टू गिव देम प्रोटेक्शन। इसके बेसिस पे कोर्ट भी कंसिडरिंग द पास्ट जो भी फैक्ट्स रहे होंगे बहुत ही आराम से प्रोटेक्शन दे देता है। सो व्हेन वी सी वेयर द जुडिशरी इज गोइंग, दे आर नॉट अगेंस्ट इट, दे आर towards the change, towards the development, and they are accommodative. So that is there. Yes, there is an adoption, there is a willingness, and it is good. And मेरे को तो लगता है कि अगर boys का एक बड़ा reason है वो क्यों नहीं शादी करना चाहते हैं, एलिमनीज, बहुत ज़्यादा पैसा एट स्टेक है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऑलरेडी सोचते हैं, डर लगता है। जैसे कहते हैं विमेन हैव अ बॉडी क्लॉक, लेट मी टेल अ लॉट ऑफ विमेन दैट मैन ऑल्सो हैव अ फाइनेंशियल क्लॉक। जितना हमने खुद को समझा, अगर हम अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें भी डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि क्या थोपना है, क्या नहीं थोपना है, क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, कब मांगना है, कैसे मांगना है। सो जैसे हम अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से रश करते हैं, वैसे ही एक आदमी को भी फाइनेंशियल क्लॉक, जब तक उसकी मेंटल स्टेबल नहीं होगी, जब तक उसको नहीं पता है कि भाई उसने अपना एक किला बना लिया जहाँ वो अपनी रानी को बुला सकता है, तब तक वो नहीं बुलाएगा। तो और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, नहीं है वो पैसा आज की डेट में, नहीं है लड़कों के पास घर रखने के लिए। बहुत सारे लोग रेंटल अकोमोडेशन में नहीं मूव करना चाहते हैं। आई थिंक मनी इज वन रीजन। हमने देखा है वो शुरू में तो प्यार तो हो जाता है, प्यार से पेट और नहीं चलता। प्यार से पेट नहीं चलता। ये तो मैं भी समझाता हूँ सबको, समझते नहीं है। वो शुरू में कहते हैं ना, प्यार में अंधे हो गए, शादी कर ली, 1 साल बाद, क्योंकि देखिए आपको ना जीने के लिए पैसा भी चाहिए। ऐसा ज़रूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज की तारीख में बहुत कुछ है। वो शुरू में कर तो लेते हैं शादी। ये जो आपकी जेनजी है, चाहे भाग के करी, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ट्रेंड अभी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। वो ठीक है, वो अपर हाई क्लास या हाई क्लास के अंदर वो लिव इन रिलेशनशिप वाला, ये तो बॉलीवुड वालों ने सिखाया है, पाश्चात्य संस्कृति है, अडॉप्ट कर ली है हमने। इनफैक्ट वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंडियनाइज हो चुके हैं अब। एग्जैक्टली। मैं अभी अपनी यूएस ट्रिप से आ रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं इंडियन कल्चर में थी वहाँ पे जितना मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इंडियनाइज हो चुके हैं। उन्होंने हमें समझने की कोशिश करी है, हमारे तौर तरीकों को। इनफैक्ट कुंभ में भी जाके देखिए, आपको बहुत सारे मिलेंगे फॉरेनर्स कमिंग अराउंड। बट आई थिंक इंडिया हैज़ बीन लटक गया है वो बीच में, कैचअप करने की उस होड़ में पीछे छूट गई काफ़ी चीज़ें। वो कहते हैं ना कि वो आपने ना तो वेस्टर्न संस्कृति अपना पाए, ना हिंदुस्तानी संस्कृति अपना पूरी पाए, तरीके से कहीं आप के नहीं है, कहाँ बीच में लटक गए आपको भी नहीं पता, कहीं के भी नहीं रहे बीच में। दैट इज देयर। आपको एक मैं मजे की चीज़ बताऊं, ये जितने ब्रांडेड पर्सेस जो होते हैं, मैक्सिमम इसकी परचेजिंग शादियों में होती है। देखिए ज्वेलरी, जिसको आप ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी हम लोग जेंट्स वो ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी, पर्सेस, पर्सेस, ये मैक्सिमम इसकी परचेजिंग होती है। और आपका डिज़ाइनर ड्रेसेस। एक शादी की अगर हम बात करते हैं, 2 लोगों की शादी जब होती है, उन दोनों को क्या मिलता है, जबकि जो 500 लोगों की या 1000 लोग जो आपकी शादी में आते हैं, उनको क्या मिलता है, और आपका एक्सपेंस कितना होता है। कभी थोड़ा सा आपने कभी इमेजिन किया हो, आपके पास तो इतने सारे केसेस आते हैं,
कि मेरी इस शादी में हमें डिवोर्स जब डिवोर्स की जब बात करते हैं कि भाई मेरे शादी में 2 करोड़ लग गए या 3 करोड़ लग गए या 5 करोड़ लग गए, वो किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है इसकी? फर्स्टली तो भाई एट द मोमेंट how much your pocket is, what does it allow. But I think irrespective of what your pocket allows, there should be a certain way where a marriage should be conducted. Ultimately it's just a ceremony. Exactly. Okay, like all other ceremonies. And I think the government and the legislature should intervene here at least. कि भाई marriages में जिस तरीके का पैसा splurge होता है ना, पूरे इलेक्शंस का बजट निकल जाए ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा. अभी आप देखिए ना कैसे हाइप आउट बनाया था इसके अंबानी की मैरिज को. Exactly, it was a national event. Exactly, much more than a national event. People had come from all across the globe. कौन कौन नहीं आया था. I really don't know लोगों का क्या रैशनल रहता है शादी में खर्चा करने का. It's a complete pomp and show business. It's a complete show of business now. People want to reflect. It's like the golden ticket to show your wealth, your power, your reach. मैम बट उसमें से बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि बाजार से पैसा लेके शादी करते हैं लोग. मजबूरी हो जाती है इन दैट केस. क्योंकि मेरे को सोसाइटी में रहना है और मेरे को सोसाइटी में अपना एक स्टेटस मेंटेन करना है, फ्लॉन्ट करना है. तो आई हैव टू स्पेंड एंड आई हैव टू कॉल थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट. तो जब वो 1000 गेस्ट उनको जब बुलाने हैं तो पैसा नहीं है और पैसा लेना पड़ेगा. वही तो मैं कह रही हूँ, लोग खुद से जुड़ ही नहीं सकते ना. खुद से जुड़े हुए नहीं, उनको पता ही नहीं उनकी लिमिटेशंस कहाँ तक है. कितना भी खुद को स्ट्रेच कर जा रहे हैं जस्ट फॉर सोसाइटल नॉर्म्स. लोग क्या कहेंगे इसके हिसाब से. मैंने तो जीना कब का छोड़ दिया. कैसे नहीं आज के लोग ये बात समझ रहे हैं. गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है इसमें कोई. होना चाहिए बट मुझे लगता है कि मैरिजेस को कंस्ट्रक्टिवली ग्रो करने के लिए, जी, बढ़ाने के लिए, बॉयज़ का जो एक कॉन्सेप्ट है कि दे आर गोइंग टू लूज ऑन टू अ लॉट ऑफ एसेट्स. जो कि क्यों, बिकॉज एक आदमी जब भी कुछ बनाता है वो अपने पूरे परिवार को सोच के बनाता है. वो ना खाली एक लड़की सोच के बनाता है, ना वो खुद को सोच के बनाता है. उसके पीछे माँ बाप होते हैं, आगे उसके बच्चे होते हैं, बगल में उसकी बीवी होती है. दैट्स हाउ आई थिंक अ मैन्स माइंड वर्क. बट अ वुमन्स माइंड वर्क इज मोस्टली अबाउट हर यूनिट. तो औरत जब एक यूनिट को देखती है कई बार तो उसके लिए वो उसका पति और उसके बच्चे होते हैं. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेल काउंटर पार्ट्स वुमेन के पेरेंट्स को एज ए यूनिट नहीं देख पाते, इसीलिए वुमेन भी इन द कंसिडरेशन भूल जाती, भले ही करती सब है. तो आदमियों को मौका देना चाहिए. और उस मौके को आप कैसे, हाउ टू सिक्योर अ मैन. हमेशा से बात रही है सिक्योरिटी टुवर्ड्स वुमेन की, बट आज तो आदमी भी बहुत इनसिक्योर है. महिलाओं से इनसिक्योर है, हमारे लॉज से इनसिक्योर है, रॉन्ग पीनल एक्शंस की वजह से इनसिक्योर है. इन सब रीजंस की वजह से दे डोंट प्रेफर मैरिज अनलेस दे आर वेरी 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 श्योर. हाउ टू ब्रिंग दैट श्योरिटी. उसमें अमेंडमेंट्स, उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं हो रही. जैसे वो कहते हैं कि हमने बात करी लिव इन रिलेशनशिप में, तो मॉडिफिकेशंस इन्होंने कर दी अपने नॉर्म्स के अंदर धीरे धीरे. यहाँ पे व्हेन यू से मेंस आर इनसिक्योर, मेन आर इनसिक्योर नाउ. तो वो पहले जो केस था कि आदमी औरत को पीटता था, अब तो औरत आदमी को पीटती है. अब दोनों एक दूसरे को पीटते हैं. कांड से औरत आदमी को पीटती है. औरतें अभी भी पिट रही हैं बट अब आदमी भी पिट रहे हैं. आदमी भी पिट रहे हैं. आदमी ज्यादा पिट रहे हैं शायद. ज्यादा नहीं, अब ज्यादा रिपोर्ट हो पा रहे हैं बट स्टिल आई थिंक रिपोर्टिंग बहुत कम है. और ये देख के बहुत ही बुरा लगा कि अचानक से सभी काफ़ी प्रताड़ित आदमियों को लग रहा है सुसाइड इज़ द ओनली वे. दे हैव कम्प्लीटली लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग आई थिंक. और अभी कहीं पर एड्रेस भी नहीं होने वाला है. वी वुड नीड अ लॉट मोर टाइम टू क्रिएट अ जेंडर न्यूट्रल लॉ इंस्टेड ऑफ अ वुमन फेवरिंग और अ मैन फेवरिंग. नहीं, ऐसा मैं आपको नहीं होगा. वो नहीं होगा. देखिए विमेन क्या होती है, वो कहीं पे भी जाएगी ना, वो जज के सामने 4 आंसू बहा देगी. बट जैसे आपने बोला है कि बॉडी स्ट्रक्चर, मेन एंड वुमेन दे हैव अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ कन्वेइंग देयर फीलिंग्स. तो यूजुअली आदमी जो है ना वो रोता नहीं है, वो अपने आंसू अंदर दबा लेगा, औरत बाहर निकाल देगी, और वो उस आंसू के चक्कर में जो है ना वो जज पिघल जाता है. तो बहुत से केसेस में इतना एक्सप्रेसिव अगर होना था तो बीवी के साथ ही होते ना, जज के सामने आने की नौबत नहीं आती. लेकिन ये होता है. आर्टिकुलेशन करना आना चाहिए. आई थिंक मेन लैक व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन. पता नहीं क्यों इतना सख्ती से उनको बड़ा किया. वो तो दिखता है ना, मैं आपके सामने बोल ही नहीं पा रहा. नहीं, तो ये सब कुछ मुझे लगता है परवरिश में पेरेंट्स का बहुत मेजर हाथ है. जैसे अपने लड़कियों को खाना बनाना सिखा रहे हो, कपड़े धोना सिखा रहे हो, बराबर से अपने लड़कों को भी सिखाओ. आज भी मैं कई हाउस होल्ड्स में देखती हूँ कि पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, छोटी बहन से कहा जाता है कि भाई को खाना खिला देना. अरे भाई ऑलरेडी 5 साल बड़ा है, वो बहन को खिलाएगा. मैंने देखा अपने नॉर्थ इंडियन हाउस होल्ड में ये जो एक अंडरलाइन एक्सपेक्टेशन है कि घर में अगर महिला है. नहीं, लेकिन अगर वो ऑफिस से आया है
और बहन अगर घर में है तो खाना खिलाना तो बनता ही है ना बहन का। अगर यू आर गोइंग आउट फॉर डेज ऑल टुगेदर तो एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी, वो भी कॉलेज से आएगी तो वो ये बोलना चाहिए नाश्ता तू करा दियो और खाना वो खिला देगी। हाँ, तो दैट इज देयर। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर हमने प्रीनप्स, जो कि यूएस का एक कॉन्सेप्ट है, को इंडिया में थोड़ा सा प्लीज बताइए लीगलाइज। सो प्रीनप्स इज व्हाट, इट्स एन अरेंजमेंट। हिंदी में बता दीजिए आप। प्रीनप एक लीगल टर्म है। सो इसको कहते हैं प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट। प्रीनप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इसको मैं हिंदी में सुनना चाहूंगा, मैं इंग्लिश में प्री न्यूपिटल मींस मैरिज से पहले। न्यूपिटल मींस शादी में जो गांठ बांधती है, ठीक है, उसको न्यूपिटल कहते हैं। प्री न्यूपिटल मींस मैरिज से पहले का एक अग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, यूएस में बहुत ही पुराना कल्चर है कि आप लोग सारे अपने अपने एसेट्स लिस्ट कर देते हो एक अग्रीमेंट में, और फिर क्लियरली बता देते हो भाई अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इन एसेट्स पे आपका कोई लेना देना नहीं, इन एसेट्स पे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ, एक मेंटल ब्लैंकेट तो मिल गई ना कि भाई अच्छा चलो कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप सिक्योर रहेंगे, घर का पता है कि मेरे माँ बाप के घर पे छत रहेगी। लड़के के एंड से उसने वो सिक्योरिटी दे दी। अब लड़की क्योंकि वो इक्वालिटी की बातें कर रही है, इक्वल कमा रही है, आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा कमा रही हैं एक्चुअली, ज़्यादा कमा रही है। हाउस होल्ड में मैंने देखा है मेन आर अर्निंग वे लेसर देन व्हाट वुमेन आर अर्निंग। वहाँ पे भी पूरे सोशल डायनामिक, सोशल पावर। आप कैसी बातें करते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स कमा रही है। हाँ, जिस आदमी की 1 लाख की कमाई होगी ना, वो 50,000 तो घर के खर्चे में दे देगा, 25,000 बच्चों की एजुकेशन में और 25,000 बीवी को, उसकी जेब में क्या बचा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैन तो बेसिकली कमा ही नहीं रहा। मैं वही तो बोल रही हूँ। आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा कमा रही है, मैं कहता हूँ वो आदमी तो कमा ही नहीं रहा देखा जाए तो। देखिए आपने अभी खुद बताया इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई, और एक जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होती है ना, वो आदमी को, वो उसके माइंड में हमेशा घूमती रहती है कि मुझे एक महीने में इतने पैसे कमाने ही कमाने हैं। और कई बार तो लड़ाई का केस ये भी बन जाता है। नहीं तो फाइनेंशियल इश्यूज आर द टॉप रीजन फॉर डिवोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में अब तक वो सेकंड रीजन था, सेकंड हाईएस्ट रीजन था फॉर डिवोर्स। अभी तक तो वो आपने पहले बताया कि माँ बाप की इंटरवेंशन, पैसे की कमी से भारतीय महिलाएं चल जाती थी, उनको घर चलाना, अगर आदमी पसंद है उन्हें तो फिर वो कुछ भी करेंगे उसके साथ रहने के लिए। बट अब वो डायनामिक भी चेंज हो रहा है। फाइनेंशियल रीजंस आर स्लोली नाउ कमिंग एज द टॉप रीजन फॉर डिवोर्सेस इन इंडिया एज वेल, वेयरएज अक्रॉस द ग्लोब हमेशा से फाइनेंशियल रीजंस सबसे ऊपर रहे हैं, बट इंडिया में इट वाज नॉट वन ऑफ द टॉप रीजंस। सो इनकम्पैटिबिलिटी, अब्यूज, वायलेंस एंड देन फाइनेंसेस, क्योंकि गरीब घर भी अच्छे से चलते हैं, ठीक है, झोपड़ी के नीचे भी। ये बताइए आप कि अगर हम एक रेशियो की बात करते हैं, हाई क्लास, अपर मिडिल क्लास और एक इससे नीचे की जो कैटेगरी है, मैक्सिमम डिवोर्स के केसेस कहाँ, किस कैटेगरी में है? ये इसका थोड़ा सा मैं डेटा जानना चाहता हूँ आपसे। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आई से। नहीं, but still there's always a data available. क्योंकि जो डेटा हम लोगों को गूगल दिखाता है या इंसाइक्लोपीडिया जो दिखाता है, इंडिया का जो डेटा दिखाता है, वो डेटा दिखाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर एट हायर लेवल एंड अपर मिडिल क्लास, एंड द थर्ड वन इज मिडिल क्लास। तो ये जितने हायर क्लास इज मच मोर एजुकेटेड या मच मोर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग than the upper middle class. Upper middle class is in a similar pattern. उस हिसाब से upper middle class जो है वो आपका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है मिडिल क्लास से, तो वहाँ पे केसेस क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? वहाँ पे फाइनेंस तो, जैसा कि मैंने बोला ना आपको कि फाइनेंसेस वहाँ पे उनके सेटल्ड हैं, ठीक है, तो लीगल जो एक्सपेंस है डिवोर्स का, वो इट्स नॉट ईजी, ठीक है, इट्स अ मेंटल टोल प्लस अ फाइनेंशियल टोल ऑल्सो। हर किसी, जैसे लोग सालों से इकट्ठा करते हैं पैसे, ठीक है, उनके माँ बाप भी कर रहे हैं, दादा दादियाँ शॉल इकट्ठा कर रहे हैं, सबके एक साथ आने से 2 लोग का घर बनता है। बट अगर उनको तोड़ना है तो कोई उनके साथ नहीं आएगा, वो उनको खुद वो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी है। तो उसमें देखा जाता है सक्षम कौन है। अब जितना आप स्ट्राटा में नीचे चले जाएं, उसके तो खाने पीने, रहने, घर पे छत की दिक्कत है, डिवोर्स वोर्स तो छोड़ ही दो। पति कितना भी मारता होगा, बीवी आके शाम में उसको खाना देगी, पैसे भी देगी, उससे जाके वो दारू भी खरीदेगा, अगले दिन फिर मारेगा। शी इज़ यूज्ड टू दैट पैटर्न, उसको नहीं पता कहाँ जाए, वही है उसकी दुनिया। Whereas when you move higher up in the ladder, there is a, जैसा कि मैंने बोला, it's a problem of plenty. How? Options उनके पास कई सारे हैं, कई सारे लोग हैं उनको अपने पास बुलाने के लिए, कई सारे पैसे, एडवाइजरी काउंसिल पूरा बैठा हुआ है,
ठीक है, एक फ्रेंड श्रीलंका में बैठी है, उसको वहाँ का कल्चर सुना नहीं, एक चीज और भी तो हो गई आजकल। आजकल तो किट्टी पार्टीज में सुबह बीवी सही जाती है, पता लगता है किट्टी पार्टी से आई और शाम को कह दिया मेरे को तो तेरे से डिवोर्स चाहिए। बहुत केसेस है ऐसे। अच्छा, दिस न्यू टू मी। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत केसेस है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। डिवोर्स आज की डेट में कोई आता है, कम से कम 1-2 लाख रुपए लेके चलो जेब में, मिनिमम। अच्छा क्या बात काउंसिल कर रहे चाहिए, हैं आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा Divorce- काउंसिल चाहिए तो उसकी 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए जी। नहीं, ये तो सिर्फ लीगल फीस बताई है मैंने, एलिमनी वगैरह तो अलग। ये तो मैंने सिर्फ लीगल एक्सपेंस बताया। अगर आप एक अच्छे काउंसिल के साथ काम करना चाहते हो, हाँ, अगर आपको वही एक डेट पे 500,000 रुपये वाला चाहिए तो आपका डिवोर्स भी चलेगा फिर 15 साल। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। जल्दी करवाना है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना, जिसके पास ज़्यादा है वो बेस्ट अफोर्डेबिलिटी यूज़ करके, अपनी बेस्ट रिसोर्सेज यूज़ करके फटाफट अपना काम करवाएगा, अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करते। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैं बताती हूँ। लीगल फ्रेमवर्क में अगर हस्बैंड को या वाइफ को डिवोर्स चाहिए होता है तो एक सेट पैटर्न ऑफ केसेस है जो फाइल किए जाते हैं। शायद अतुल सुभाष केस में भी ये आपके शो में डिस्कस हुआ था, बट आई वुड लाइक टू रिपीट इट। प्लीज। The first thing is, so if you're filing from a woman's side, first thing is you file a petition for maintenance, कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, हमारा हस्बैंड छोड़ के जा चुका है। सेकेंड थिंग इज मेंटेनेंस में वो आएगा नहीं, समन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिले करता रहेगा। पैरेलली 498A का केस फाइल होता है, FIR, जिसमें हमारे साथ मेंटल क्रूएल्टी, इमोशनल क्रूएल्टी, फिजिकल क्रूएल्टी के सारे जो भी ये ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के। अब मेंटेनेंस फाइल कर दिया मतलब डिवोर्स की तैयारी चल रही है। पहले मेंटेनेंस से हस्बैंड से पैसा लेते हैं, फिर 498A फाइल करते हैं कि हस्बैंड ने कैसे कैसे प्रताड़ित किया। वो एक FIR कन्वर्ट होती है चार्जशीट में और वो एक अलग सेपरेट केस चलता है। तीसरा केस डालते हैं डिवोर्स का। उससे पहले 377 में भी डालते थे। प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है इसमें? 5 साल। 5 साल। 4 केसेस फाइल करो। स्टैंडर्ड, इट्स लाइक अ बाय द बुक प्रिंसिपल है। लॉयर्स हैव क्रैक्ड इट। 4 केस फाइल करो। एक ये विड्रॉ करोगे तो हस्बैंड ये कंडीशन मानेगा, ये विड्रॉ करोगे तो ये कंडीशन मानेगा। मतलब जैसे जैसे कंडीशन मानती जाएगी, केसेस विड्रॉ करना है, एट द टेबल लाना है, बात मनवा लेनी है। इवेंचुअली जब तक म्यूचुअल डिवोर्स नहीं फाइल होता तब तक ये सारे केस चलते रहेंगे। म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर दोगे, मान रहे हो मेरी बात, ठीक है, FIR वाला लास्ट में विड्रॉ होगा सेकंड मोशन के बाद। तो पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। लॉयर की भी अच्छी कमाई हो जाती है। बट ये बात कहना गलत है कि ये वकीलों ने कमाने का धंधा बना रखा है। ये सही नहीं है। देखो हमारा यही लोग तो आते हैं, आप थोड़ी ना जाते बुलाने। एग्जैक्टली। और हमारा भी घर तो ऐसे ही चलता है। हमने इसकी पढ़ाई करी है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? अल्टीमेटली देखिए, लड़ाई आपकी हुई तो आप आ रहे वकील आज तक कभी किसी के कभी कोई वकील ने किसी क्लाइंट को नहीं भड़काया चलो तुम्हारा डिवोर्स करा दो। ये तो गलत है कहना। लेकिन वकील कई बार कहते हैं मैं करवा दूंगा। वो कभी भी ये नहीं कहते कि कोई वकील, मैंने ये नहीं सुना बोलते हुए कि मैं आपको ये केस हरवा दूंगा। क्यों हरवाओ? इन दैट केस अगर आपको ये भला तो करना सारे है तो mediation सारे बोलते हैं कि केस जितवा देंगे। अरे दो लोगों के बीच में केस है, एक तो जीतेगा एक हारेगा। इसीलिए मेरी थोड़ी प्रैक्टिस का तरीका यूनिक है। मैं सबसे पहले काउंसलिंग, अपने इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस होल्ड कर लेती हूँ कि जो भी तुम्हें इनिशियल कंसल्टेशन फीस दोगे तुम्हारी फाइल पढ़ने के लिए, उसमें मैं तुम्हारी काउंसलिंग करने की कोशिश करूंगी, सो दैट आई सी कि भाई इज इट अ केस वेयर आई शुड टेक दैट स्टैंड। क्योंकि मेरा थोड़ा सा मॉरल कंपास यहाँ पे हाई रहता है कि यार ये चीज थोड़ा सा इसके आपके लिए साथ तो है, हर किसी के साथ तो नहीं है ये चीज। अगर लॉयर कंफर्टेबल होगा ना अपनी इनकम में, तो फिर वो ये सब काम में उसका मॉरल कंपास हिंडर करेगा। वो एथिक्स, हाँ, एथिक्स आएंगे। बट अगर उसके खुद के खाने के वांदे पड़े तो भाई जो मिल रहा है कर दो। तो इसीलिए क्यों कहते हैं अच्छा लॉयर इसलिए प्रेफर करना चाहिए कि उसका मॉरल कंपास क्या है, आपके लिए क्या ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन इट्स फीस। वो एक उसके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम ऑन, यू आर पावरफुल, यू हैव नॉलेज एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ इट वाइजली। दो हमको ऐसा कहीं सिखाया नहीं गया है, बट सोशल कंस्ट्रक्ट और मॉरल कंस्ट्रक्ट यही कहता है कि पहले बिगर पिक्चर को देखो, उसके बाद स्मॉलर थिंग्स पे जाओ। तो लार्ज पर्सपेक्टिव है। हाँ। वो आदमी की सोच के हिसाब से मुझे यहाँ रहना है, यहाँ रहना है, तो एक आपका स्पेक्ट्रम जो है कितना आपको ब्रॉड करना है वो डिपेंड करता है। हाँ, अल्टीमेटली इट्स यू वर्सेस यू। आखिरी मोमेंट में तो खुद से ही आंखें मिलानी है ना। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे डेथ बेड पे पीस मिलना चाहिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया। वैसे गलत करने के हर दिन मौके आते हैं, प्रोफेशन ही ऐसा है। तो यू हैव टू बी, आई थिंक यू आर द फर्स्ट लॉयर हु इज टेलिंग so much
clear way or clarity. Yes, I'm very vocal about it. And अगर एक अच्छी लॉयर महिला है या मैन है जो सोसाइटी के फैब्रिक्स को इतने अच्छे से समझता है, लोग कहते हैं कि ये तो लॉयर है, लड़की इससे क्यों शादी करें, तो लॉयर घर में थोड़ी भेजेंगे अपनी बेटी को. अगर एक सुलझा हुआ अच्छा लॉयर है, उसने इतनी चीज़ें देख रखी थी, इट्स लाइक यू हैव लिव्ड अ मिलियन लाइव्स इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. उसको एकदम सही से पता है कि क्या गलत है और क्या सही है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसको लोग फिगर आउट करने में अपनी ज़िंदगी के 40-40 साल बिता देते हैं. सो आई प्रिज्यूम दैट people coming from legal backgrounds will make an amazing spouse because they've been taught. हमको कोई ज़िंदगी जीना सिखाता है? नहीं सिखा, हम खुद सीखते हैं ना. इसीलिए मैं कहती हूँ गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी ज़िंदगी में. जो पुरानी संस्कृति होती थी सब कुछ करना बताते थे, अब वो नहीं है, तो हम लोग को फिर भी आपके पास तो लाइफ एग्जांपल्स जब होते हैं तो वो अपने प्रैक्टिकल इश्यूज जब आपसे डिस्कस करता है, सो यू आर आल्सो इन्वॉल्वड एज अ लॉयर. टोटली. तो उसमें से यू कैन मेक आउट द बेस्ट पार्ट कि लड़ाई क्यों हुई, डिवोर्स तक क्यों पहुंची, फैमिली डिस्प्यूट क्यों हुआ. तो वो एक एक्सपीरियंस भी तो बहुत काम आता है उस चीज़ का. एब्सोल्युटली. फिर हमें पता चल जाता है इसमें क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या क्या आज की लैंग्वेज में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग तो वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं आसानी से. एंड ये लाइफ में से हटाओ जितने रेड फ्लैग्स हैं. हाँ, रेड फ्लैग्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना. यू डोंट नीड टू गेट इनटू द मड एंड देन समझो अच्छा ये तो यहाँ पे काट लिया वो बाद में नहीं. एलिमनी की बात करते हैं. मेरे को तो पहले ये बताओ तो एलिमनी होता क्या है. मैं तो अभी तक थोड़ा बहुत ही मेरे को नॉलेज है. सो उससे पहले मैं प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स की बात कर रही थी. मैंने शायद क्लियर किया जी कि प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स मतलब शादी से पहले हम एक ऐसा कंसाइनमेंट मतलब एक अग्रीमेंट में आ जाए दोनों पार्टीज कि हमारे एसेट्स सेपरेट रहेंगे, और अगर हमारे एसेट्स सेपरेट रहते हैं इन एनी डिस्प्यूट तो यू विल टेक अवे व्हाट यू हैव ब्रॉट एंड आई विल टेक अवे व्हाट आई हैव ब्रॉट. ठीक है, तो और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की एक लेयर मैन के अराउंड क्रिएट हो जाती है. और वुमेन ऑल्सो दे स्टे एनकरेज्ड कि दे हैव टू कीप अचीविंग मोर एंड मोर. अब क्या होता है, एलिमनी इज समथिंग व्हेन जब शादियां टूटती हैं तो फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था आइदर ऑफ बोथ द पार्टीज जब वो शादी कर रहे थे. तो बट कुछ शादियां तो इसीलिए होती है कि दे वांट टू गो इनटू दैट स्टेज. वो स्टैंडर्ड केस नहीं है वो लॉ के अंदर, वो एक एक्सेप्शन है. वो अब होने लगा, एक्सेप्शंस ज़्यादा बढ़ गए हैं. हाँ, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस था वो अलग हो चुका है. उस केस में बिल्कुल एलिमनी वगैरह नहीं देनी चाहिए जो विद इंटेंशन कर रहे हैं. देनी तो नहीं चाहिए, अब कोर्ट बोलेगा तो देनी पड़ेगी ना उसको. अब एलिमनी का मतलब यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ. जज ने बोला तो यू हैव टू गिव. एलिमनी का पर्पस क्या होता है, एलिमनी कैसे डिसाइड होती है? एलिमनी इज फर्स्टली वन थिंग, एक वन टाइम का सेटलमेंट होता है जो एक पार्टी जो कि हायर अर्निंग पार्टी होती है लेसर अर्निंग पार्टी को देती है. ठीक है, पार्टीज कौन है? हस्बैंड और वाइफ. इसमें जो हायर अर्निंग है वो लेसर अर्निंग पार्टी को देता है अपना जीवन व्यापन करने के लिए. ठीक है. ठीक है, अब इस जीवन में उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उनको भी मेंटेन करना है क्योंकि बच्चे एक इंसान ने तो अकेले तो किए नहीं. राइट. तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस देने होते हैं. अब नाउ इट डिपेंड्स बच्चा किसके साथ जा रहा है. अंडर 18 है, 90% 95% टाइम वो माता के साथ ही जाता है, अपनी मॉम के साथ जाता है. वहीं ऐसा क्यों? मोस्टली यही होता है क्योंकि चिल्ड्रन आर मोर, they have been more in a physical touch with the mother knows most of their things. Parents जो father रहते हैं वो usually attached relationship में रहते हैं. 20-20 साल बीत जाते हैं, बच्चों ने अपने बाप को हक भी नहीं किया होता है पुराने ज़माने में. तो जितनी करीबी अपनी माँ के साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है बच्चों को, शायद फादर के साथ नहीं होती है. बट अगेन ये स्टैंडर्ड्स भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं. मैन आर ऑल्सो लेवलिंग अप, आई हैव सीन दैट. सो अब इसको सेपरेट तो हो रहे हो, कैसे खर्चे बीतेंगे? आदमी का क्या, वो तो दूसरी शादी कर लेता है, औरत बच्चे के साथ जा रही है. ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, इसको खर्चा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए. आजकल वाइस वर्सा है. तो नाउ ये कॉन्सेप्ट आता है एलिमनी का. इट इज़ व्हेन इट इज़ परमानेंट एलिमनी, मतलब वन टाइम सेटलमेंट, तो उसको एलिमनी कहते हैं. जब आप इन पार्ट्स देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जैसे हर महीने 50,000 देना है या 1 लाख देना है, देन इट बिकम्स मेंटेनेंस. Women usually prefer alimony because men are not consistent. वो लगातार देंगे नहीं, then they have to fight another battle. वो ठीक है, 2 साल बाद मना कर दिया, हाँ, मेंटेनेंस नहीं आ रहा है या मेरी कमाई कम हो गई, तो इससे अच्छा अब एलिमनी डिसाइड कैसे होती है? आप बोले मैं तेरे को 50,000 रुपये दे रहा हूँ, जाओ जी अपनी ज़िंदगी. कैसे जिएगी आगे आने वाले 20 साल 30 साल? बच्चे को भी पढ़ाना है. तो द स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज, फाइनेंशियल्स नंबर 1,
लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप विला में रह रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो आपका 50,000 रुपये मेंटेनेंस में नहीं होगा, क्योंकि यू आर यूज टू अ सर्टन लाइफस्टाइल। बच्चे नहीं पहनेंगे विशाल मेगा मार्ट के कपड़े, ठीक है, वो नहीं होगा उनका लोधी पार्क में जाके उनकी पिकनिक नहीं बनेगी, उनको जाना यूनिवर्सल, दे हैव बीन रेज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो ये सब बैकग्राउंड देखते हुए, उनकी एजुकेशन देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस देखते हुए, उनका लाइफस्टाइल देखते हुए और पेरेंट्स की इनकम देखते हुए एक मेंटेनेंस का, एक एलिमनी का अमाउंट सेट होता है। सो and that is being decided by Court. the court. आपसे क्वांटम पूछा जाता है कि भाई हाउ मच मनी डू यू वांट, आपके एक्सपेंसेस का एक ब्यौरा मांगा जाता है, ठीक है। तो इनकम ऑफ एफिडेविट फाइल किया जाता है, उसके बेसिस पे एक लमसम एलिमनी अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। रिसेंटली था ना 5 करोड़ मांगा था, और नहीं 50 करोड़ मांगा था, 5 करोड़ रुपये मिला, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मांगने वाला तो ज़्यादा ही मांगेगा ना, वो कम क्यों मांगेगा? वो कभी भी कम नहीं मांगता। अभी तो आपको यही तो आपको बता रहा था मैं कि आजकल तो डिवोर्स केसेस भी सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि एलिमनी के लिए। तभी तो प्रीनप बनाओ ना, प्री न्यूबिटल एग्रीमेंट्स को अगर मैंडेटरी कर दो, एलिमनी अगर एज अ पर्पस खत्म हो जाता है डिवोर्स का, कि भाई अगर इससे डिवोर्स करा लेती हूँ तो एलिमनी मिलेगा, तो उस केस में तो शायद हो सकता है कि डिवोर्स केसेस भी बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ, तो इट्स अ गुड कंस्ट्रक्ट, इट्स अ गुड सोशल कंस्ट्रक्ट। लोगों को भी तो ये मैरिज तो गवर्नमेंट को लेकर आना चाहिए इसको। मैरिज, और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ऐसा नहीं समथिंग न्यू है, या हमारी कंट्री पहली है। इस कल्चर को कॉपी करो ना, वेस्टर्न कल्चर को। कुछ अच्छा है तो अडॉप्ट करो। अच्छा कल्चर है। एग्जैक्टली, सो दैट इज वन थिंग। अब आते हैं डिबेट के बारे में, डाउरी वर्सेस एलिमनी। डाउरी लेते वक्त तो नहीं तुम्हें डर लगा था, अब एलिमनी देते वक्त क्यों दिक्कत हो रही है? ये डिबेट चल रहा है, यू अवेयर अबाउट दिस? उस टाइम आपको किसी को लेकर आना होता है ना घर में, और इस टाइम आपको भेजना होता है। लेना अच्छा लगता है। टू एंड फ्रो मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, एक टू है, एक फ्रो है। मेरा मानना ये है कि ये एक सीन ही नहीं है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक नहीं है, बिकॉज इट इज नेवर डाउरी वर्सेस एलिमनी। पर्पस ऑफ एलिमनी वाज वेरी डिफरेंट, पर्पस ऑफ डाउरी वाज वेरी डिफरेंट। डाउरी अगर हम एज अ कस्टम देखें, ऑफ कोर्स लॉ में तो इसकी कोई जगह है नहीं, बहुत ही इट्स बेसिकली अ क्राइम। एग्जैक्टली, बट यू नो व्हाट पीपल से, जब डाउरी की बात करते हैं तो ये बोलते हैं डाउरी बेसिकली दिस इज नॉट डाउरी, एज अ गिफ्ट वी आर गिविंग। वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो दैट इज एंटायरली डिफरेंट इस चीज़ को लेके, और ये ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास में रहती है। सभी जगह है। पर्पस क्या था ना इनिशियली, अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो डाउरी का जो पर्पस पहले ये भी था कि लड़कियां नीचे के घर से लाते थे, जो कि फाइनेंशियल पैरिटी ना हो, ठीक है। से आज मैं मनुस्मृति पढ़ रही थी सुबह ऐसे आने से पहले, तो मैंने इसमें कुछ श्लोक पढ़े जो कि बोल रहे थे दैट विमेन जब कुमारी होती हैं, अब मुझे संस्कृत तो नहीं आते, तो अपने पिता के नेतृत्व में रहती हैं, यौवन आता है उनका तो अपने भ्राता के नेतृत्व में रहती हैं, फिर जब उनकी संपूर्ण जवानी आती है तो हस्बैंड के नेतृत्व में रहती हैं। और ऐसा कहा गया है कि औरत कभी भी इंडिपेंडेंटली रहे, ये सोसाइटी के कंस्ट्रक्ट में कहीं फिट नहीं हो पाता। ये जो पूरा पैराडिम शिफ्ट आ चुका है। अब जब हम अपने घर में कुछ दूसरे घर से लड़की लेकर के आते, कई बार पेरेंट्स चाहते थे कि हमारी लड़की, भाई हमारी तो इतनी क्षमता नहीं थी, बट अच्छे बड़े घर में चली जाए। अब बड़ा घर क्या होता है? बड़ा ओहदे में होता है, बड़ा इज्जत में होता है, बड़ा पैसे में होता है, बड़ा ज्ञान में होता है, बड़ा सम्मान में होता है। नहीं, ज्ञान और सम्मान की तो बात ही नहीं है ना। शादी जब वो नीचे जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, तो भाई समाज में इज्जत इनकी ज़्यादा है, इनको हमसे ज्ञान ज़्यादा है, मतलब लड़का इनका बीटेक एमटेक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, इनका स्टेचर ज़्यादा है, 2-2 मकान लिए हुए हैं, हम लोग तो सरकारी फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे घर में अगर उनकी लड़की चली जाए तो क्या होगा इससे? लड़की की तो लाइफ सॉर्ट होगी, हमारे परिवार का भी स्टेटस एलिवेट होगा। लड़के के परिवार का स्टेटस कैसे एलिवेट करते थे पहले? ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लेकर के अमेरिकन ड्रीम जीते थे, यूएस जाते थे। जिस घर से लड़का यूएस चला गया, उसकी तो शादी हो ही जानी है। अब नहीं होती सर, अब लड़कियां ज़्यादा जाती है। अब लड़कियां यूएस जाना नहीं प्रेफर करती, दे नो द रीजन। वहां जाके झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? यहाँ पे वो घूमने के लिए जाती है ना, उनको क्या जाना है, रहने कौन जा रहा है? अब नाउ दे नो, मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम में मैं जाऊंगी, ट्रिप मार के चली आऊंगी। मेरा खुद का केस है, इतने जितने एनआरआई रिश्ते आते हैं सब मना कर देती हूँ, मेरे को नहीं जाना। व्हाई वुड आई डू दैट? क्यों मैं वो पेन लूँ जब मुझे यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं? तो पहले कंस्ट्रक्ट ये होता था कि लड़की को बड़े घर में भेजने के लिए डाउरी वाज समथिंग टू कॉम्पनसेट।
ठीक है, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, रख लो, टेक माय गर्ल। इसको तो इसका मतलब गलत स्टाइल से पोर्ट्रे कर रखा है। ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट था। फिर धीरे धीरे जब वो अपनी तरफ से दे रहा है तब तक वो ठीक है, तभी तक वो गिफ्ट है। द मोमेंट यू आस्क फॉर समथिंग, एक्सट्रैक्शन चालू हो गई उसकी। द मोमेंट यू से कि नहीं इतने में नहीं होगा, ये चाहिए, जहाँ पे आपने इसमें ट्रेड ला दिया, आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ लव, कोई कुछ भी देगा आप ले लो, बट द मोमेंट यू से डिमांड्स रखना चालू कर दी, देन इट बिकम्स डाउरी। ठीक है, एंड ऐसा नहीं, लड़के वाले भी कुछ तो शादी में एक्सचेंज ही होता है ना। आजकल तो लड़के वाले डाउरी देते हैं शादी करने के लिए। कल ही मैं अपने friend से कह रही थी, क्योंकि लड़कियां आती नहीं। आप ये समझिए, लड़के वाला जब लड़की ढूंढने जाता है ना, उसको लड़की नहीं मिलती, और लड़की वाला जब लड़का ढूंढने जाता है तो उसको लड़का नहीं मिलता। नहीं मिलता। रेशियो तो हमारे पे बराबर सी है भाई, केरला तो नहीं है ये। ये बात बिल्कुल सही है। तो डाउरी का कॉन्सेप्ट ये था, फिर धीरे धीरे वो डिमांड में चेंज हो गया। फिर जब वो डिमांड में बन गया तो वो ईविल हो गया, क्योंकि अब लोगों को एक्सटॉर्ट करने लगे। यू स्टार्टेड गोइंग बियॉन्ड दैट, मीन्स कि भाई लड़की का बाप, आप मंडप पे खड़े होकर कह रहे हो 5 लाख रुपए और लाओ, वहाँ उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो मरे जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। सो नाउ फिर वहाँ से उसने एक ईविल स्पिरिट पकड़ ली। ठीक है, सो दिस इज वन पर्पस ऑफ डाउरी। एलिमनी ऑन द अदर हैंड इज अ सेकंड फेज ऑफ मैरिज ऑल टुगेदर। थिंग्स डिडंट वर्क आउट, आपको ऑफ कोर्स आपकी भी एक वो फैमिली थी, आपका भी वो बच्चा था, आप चाहोगे आप उसे मेंटेन करो, सो देयरफॉर मेन हैव टू गिव। बाय द वे, जस्ट अ फैक्ट, नाउ द लॉ सेज that alimony has to be given from the partner who is earning more to the partner who is earning less. It is a gender neutral kind of laws, और आजकल men को भी alimony मिलना चालू हो चुकी है। सीरियसली? Yes, men have started getting, ऐसे कुछ केसेस आप बताएंगे? men have started getting alimony recently, बहुत छोटे शहर, I think वो फाइल किसने किया था? doesn't matter actually फाइल किसने किया हो, बट अगर आदमी को मेंटेनेंस चाहिए, जिसको भी मेंटेनेंस चाहिए, उसको अपनी पेटिशन फाइल करनी पड़ती। मैन ने फाइल किया होगा। That man must have filed it and he won the case. At that point, I think the woman was earning 1.5 lakh and that man was somewhere around 10-20K. And what was the allegations? Cruelty. Cruelty against men. Yeah. मतलब वो बीवी पति को मारती थी। Cruelty देखिए सर बहुत तरीकों की होती है। Cruelty मतलब हम तो एक मोटा बोल रहे हैं, ब्रॉड सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। Cruelty doesn't mean कि मारना वो अब्यूज में आ जाता है, that alone is not cruelty. Cruelty mental cruelty भी होती है, okay? Cruelty emotional cruelty भी होती है, like you're depriving your partner of a baby, जानबूझ के mental games खेल रहे हो, खाना नहीं देते हो या कुछ ऐसा कर देते हो कि वो incapacitated हो जाएगी, उसको खाना ही ना, या जब भी आप old parents को torture कर रहे हो अपने स्पाउस के नॉन प्रेजेंस में, तो मेंटल गेम्स जहाँ पे चालू हो जाते हैं, when you try to when two partners start trying to compete with each other instead of being their companions, and they start trying to pull each other down instead of lifting each other up, the game is gone, the battle has begun and one of them have already lost. So cruelty बहुत शब्द छोटा है बट मीनिंग उसके बहुत सारे हैं। मैक्सिमम आजकल जितने मैंने एलिट्स का डिवोर्स करवाया, कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो रही, 5 साल तक डेट कर रहे थे तब तक सब कंपैटिबिलिटी क्या? कंपैटिबिलिटी, व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? इसमें क्या बोलते हैं कंपैटिबिलिटी? बहुत डिफरेंट है। वी तो डोंट वो तो किटी पार्टीज में जाके हो जाते हैं ना डिफरेंट व्यूज। तो वी डोंट अलाइन टुगेदर एनीमोर। ये सब समस्याएं हैं आजकल, बड़ी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ही है ये, कि इनको गोवा जाना है, उनको श्रीलंका जाना है, डिस्प्यूट हो गए इस छोटी सी बात पे डिस्प्यूट हो जाते हैं। हाँ, अरे खाने में नमक ज़्यादा पे डिवोर्स फाइल हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, खाने में रिसेंटली तो अभी पढ़ा था मैंने, खाने में हर बार खाने में नमक ज़्यादा डाल देती थी, अब बस और नहीं। ऐसे लोगों को कोर्ट कुछ झाड़ती है या बहुत ज़्यादा झाड़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा झाड़ पड़ती है। बट फिर उसके अराउंड, मतलब ये तो एक इशू होता है, उसके अराउंड 1000 टैंजिबल इशूज लेकर के जब वो जाते हैं तब जाके डिवोर्स वो बेसिकली एक इशू को वो अल्टीमेटली बनाना है उनको 100 इशू ट्रिगर हो जाता है उनका, ऐसा उनका कहना है कि ये एक वन ऑफ द रीजंस है। बट बाकी सारे उनके पास ट्रॉमा ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रॉमा से याद आया कि बट मुझे जहाँ तक लगता है ना, मैंने कुछ जो अपने अराउंड जो केसेस देखे हैं, आदमी हमेशा चाहता है डिवोर्स ना हो, कोशिश रहती है उसकी। क्योंकि अगर आप परसेंटेज ऑफ डिवोर्स केसेस देखेंगे कि किसने फाइल करे, मोस्टली विमेन। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आदमी गलत होगा, बट ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है कि आदमी गलत नहीं होगा, बट ऐसा भी कह रहा हूँ कि हमेशा आदमी गलत नहीं होगा।
That is वो एक लॉ का जो एक फ्रेमवर्क हमारा बना हुआ है, वहाँ पे बहुत मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा लगती है. पता है ना कि पुलिस आ गई, अगर बीवी ने फ़ोन कर दिया, थप्पड़ लगाया दिया, अरे यार आप किसी को वैसे भी, आप बच्चे को भी प्यार से हल्का से यूँ कर देते हो, बीवी को भी कई बार हल्का से प्यार से यूँ कर दिया आपने किसी को, वो उसने अगर 100 नंबर 112 पे फ़ोन कर दिया, खुदा ना खास्ता, पुलिस वाले की तो ऐश हो गई इस केस में. मतलब वो तो कह देगा अंदर चलो जी, या लाओ लाख 2 लाख रुपए. फिर वही जाएगी पीछे पीछे छुड़ाने वो भी. पूरी मेरे हिसाब से वो पिक्चर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी इनकी डिवोर्स की. द थिंग इज, हाँ, एक तो एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है जब बहुत छोटी सी चीज़ से हाँ, छोटी सी चीज़ से अगर पुलिस आ गई तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं. लाइक अब तो नहीं रखेंगे इसको. समाज में इज्जत रही नहीं, पर्पस ही खत्म हो गया, अपने पति को वहाँ पहुँचा दिया, निकलो घर से बाहर. वो उस मोमेंट पे जब कोई निकला घर से बाहर तो वो गेम ओवर है. अब जो बार बार कहा जाता है औरतें ही ज़्यादा डिवोर्स फाइल करती हैं, औरतें ही फाइल करती हैं. मैंने डिवोर्स कराए आफ्टर 18 years ऑफ मैरिजेस, आफ्टर 28 years ऑफ मैरिजेस, आफ्टर 30-35 years तक ऑफ मैरिजेस के 35 बाद years? एट द एज ऑफ 65 पीपल आर गेटिंग डिवोर्सेस. लोग कहते हैं अब तो हो गए 40 साल, अब क्या करना डिवोर्स. औरतों में सहनशीलता है, रहती है. दे डोंट जस्ट गिव अप ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट. ओके, जैसा कि आप कह रहे हैं आदमी चाहता है डिवोर्स ना हो, वो तब चाहता है जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती. पिछले 18 साल से जब महिला ट्राई कर रही थी कि भाई तुम सुन लो, तुम सुधर जाओ, तुम समझ जाओ, तब आंखें बंद थी. तो विमेन दे ऑफन से, इनको ना केस फाइल करना पड़ता है समझाने के लिए. केसेस रोल बैक भी होते हैं, मैंने करवाया है. दैट लेडी वाज 52 years old. द मैन वाज अ ड्रंकार्ड फॉर मोस्ट ऑफ द years ऑफ हर लाइफ एंड शी वाज टोटली डन विद इट. इतना वो बीमार पड़ चुका था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मुंह से खून की उल्टी हो रही थी. उसने एट दैट वेरी मोमेंट डिसाइड किया अब मैं इसको डिवोर्स दूंगी. फिर वो आई हमारे पास, उसने केस फाइल किया. मुझे पता था ये डिवोर्स देना नहीं चाहती है, बट इट वाज जस्ट अ वे टू टीच हिम अ लेसन. वो दिन 7 मीडिएशन के सेशंस चले. हाँ, हमको थोड़ी बहुत फीस मिली, बट उनकी शादी बची. आज वो साथ में है और उस आदमी की शराब छूट चुकी है. ये मेरा पर्सनल क्लाइंट है. सो yes, women do take that route, but men don't realize कि भाई वो इतने सालों से समझाने की एक बात कोशिश कर रही है कि उसको समझ जाओ सही वक्त पे, क्योंकि बात अगर बहुत आगे निकल गई तो फिर नहीं होगा. नो वे लुकिंग बैक. और एक और बात कहनी थी, कहते हैं कि विमेन आर गोल्ड डिगर्स. आप एक बात बताओ, शादी से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा देखा जाए तो किसको होता है आपके ओपिनियन में? ऑब्वियसली मैन. हाउ? ऑब्वियसली मैन, बिकॉज भाई शादी होगी, बीवी आएगी, कुछ तो आपका एक कंपेनियन क्रिएट होता है, और अल्टीमेटली योर नेक्स्ट जनरेशन इज बीइंग क्रिएटेड. तो एब्सोल्युटली. यू हैव टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन. भाई आपका एक साम्राज्य अगर है किसी का भी, अपर मिडिल क्लास हाई क्लास, वो उसको आगे बढ़ाएगा कौन? आप कमा किसके ले रहे हैं फिर? इफ़ यू आर फाइनेंशियली सिक्योर्ड, बट ये चीज़ विमेन को भी सोचनी चाहिए. कई इसके मिसयूज भी बहुत सारे हो रहे हैं इसके. अगर एक औरत ये देख के एक घर में शादी करती है कि आदमी के पास सर पे छत है कि नहीं, कंफर्टेबल लाइफ है कि नहीं, बेसिक गाड़ी है कि नहीं, एक अपने स्टैंडर्ड से, लिविंग स्टैंडर्ड से, तो कहते हैं तुम तो गोल्ड डिगर हो यार, तुम तो मेरे पैसे देख के आ रही हो, तुमको तो और कोई मतलब ही नहीं है. नहीं, पैसा तो देखना ही पड़ेगा अल्टीमेटली. अगर वो आपको एक बेसिक नेसेसिटीज नहीं दे सकता, आजकल तो ये नेसेसिटी है. जैसे नमक है ना, खाने में नमक नहीं रहेगा तो नहीं खाएगा. वैसे ही आपकी इनकम, आपके ऊपर छत, आपकी एक परमानेंट जॉब, आपका एक परमानेंट बिजनेस, वो एक आपकी सिक्योरिटी है. लेकिन ये लव मैरिज में ये जो डिवोर्स केसेस जो हो रहे हैं ना, वो कॉलेज में प्यार हो जाता है, स्कूल में प्यार हो जाता है, शादी के 1 साल बाद गॉन. क्योंकि वो अंधी हो जाती है ना प्यार में. So basically love, according to me, my definition of love is it's a mental sickness. It makes you blind, it makes you drowned in emotions, where you lose the rationality to make wise decisions. तो कभी भी किसी भी, जैसे कहते हैं, किसी भी इम्पल्स में, किसी भी इमोशन में, बहुत ज़्यादा एंगर में नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार में गिव अप नहीं करना चाहिए. होल्ड योर सेल्फ बैक, स्टेप असाइड, एंड देन ट्राई टू सी, बी अ व्यूअर रादर देन बीइंग इन द सिचुएशन. तब जो दिमाग काम करेगा भाई, बट उतना खुद से जुड़ा होना चाहिए इंसान को. बट मैंने बोला आज सब zombies हैं, उनको पता ही नहीं उन्हें क्या चाहिए, तो दे एंड अप मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस. ये एक वजह है. जैसा कि मैं भी कहती हूँ, गोल्ड डिगर अगर असली होता है तो वो आदमी होता है. अच्छी पढ़ी लिखी महिला चाहिए, ठीक है, वो घर का सारा काम करे, माँ बाप को खुश रखे, बच्चों के आपके गोल्ड डिगर के बाद तो गूगल हो जाएगा. आज तो ऑडियंस गूगल करेगी
क्योंकि Who are the real gold diggers? इन्होंने आधे से ज्यादा ने डिस्कवरी चैनल या हिस्ट्री टीवी 18 तो देखे नहीं होंगे, तो इनको तो पता नहीं। गोल्ड डिगर मैं बताती हूँ, गोल्ड डिगर का जो इनको बता दो आप, नहीं तो इनको ये भी बता देना हिस्ट्री टीवी 18 या डिस्कवरी चैनल देख लिया करे। गोल्ड डिगर मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ना भाई, आप सोना ढूंढते हो वहीं जाते हो जहाँ पे ज्यादा सोना मिले। तो लड़कियों को सोना इन द सेंस ऐसे कहा जाता है कि वो आदमियों की वेल्थ देख के अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा ये कौन सी गाड़ी से चल रहा है, ओ इसके पास एक्सयूवी, इसके पास तो थार है, मस्ट बी अ नाइस कैच। देयर वाज अ ट्रेंड, बट फॉर दोज वुमेन हु डिडंट हैव इनफ और हु वर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव। बट एक्चुअली अगर आप मैरिज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो men are the real gold diggers because they want a good wife, highly educated but traditional, who carry forwards the customs, take care of the family, takes care of the kid, and also parallelly looks good. उसमें आदमी क्या करेगा, जीरो इन्वेस्ट करेगा इन सब चीज़ों में। कितना थॉट जाता है, एग्जीक्यूशन इज वन पार्ट ऑफ इट, चलो मेड है, हेल्प है, अच्छी बात है, बट सब कुछ मैनेज करने में कितना थॉट जाता है। और उसी महिला को एवरेज, वैसे एक डेटा दे देती हूँ, द वुमेन हु आर वर्किंग आउटसाइड द हाउस are also spending 3.5 hours doing inside daily chores of the house, whereas a man who works outside the house spends on an average of only 30 to 38 minutes every day. ये तो परफेक्ट है, this I can agree, I can agree to this. See. ये तो मेरे साथ है। See, a working man versus working woman में वो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करेगी, नौकरी करेगी, इट्स एन एड ऑन फॉर हर, शी इज डूइंग इट फॉर हर सेल्फ। भले ही उसका आधा पैसा घर ही में जाता होगा, बट वो तो वो अपनी खुशी के लिए करेगी। सो it on a lot of front we become discriminatory, we don't realize, and we take so many services for granted for women. Also I was seeing recently this data ki agar if we start paying out housewives for the daily things that they do, their monthly income comes to somewhere around 1.5 lakhs. ये तो आपने गलत बता दिया, ये तो मांगना चालू कर देंगे। ये चीज तो आप मत बताओ। मंथली इनकम है 1.5 लाख रुपए की, अगर वो सारा काम आप करते हो। ये बता दो आप, एक बार बता दो आप ऑडियंस को, ये हमारी महिला ऑडियंस को बता दीजिए आप। The washing, the cleaning, नहीं, आप ही हमारी लेडीज ऑडियंस को बता दीजिए प्लीज। मैं तो नहीं बोल सकता ये चीज, मेरे को तो मारेंगे। Having all the sympathy for the men, but ये आप हिंदी में प्लीज इशिता, मैं हिंदी में जाऊंगा ये मैसेज आपका, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत मारेंगे पकड़ के इसके बाद। मैं ये नंबर प्लीज आप ही मैसेज दे दीजिए पहले। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आज की डेट में कंपेयर किया जाए, एक महिला जो घर में जितना सारा काम करती है, जिसमें वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ फूड्स, टेकिंग केयर ऑफ फंड्स, राइट, डूइंग जितना भी आपका मेंटल वर्क होता है, पेरेंट्स को डॉक्टर्स के पास लेके जाना, फैमिली के लिए ट्रिप्स प्लान करना, कई बार गोइंग आउट, डूइंग शॉपिंग, डूइंग ग्रोसरीज, मेंटेनिंग ऑल द मेड्स, खैर लिस्ट इज एंडलेस। आप देखते होगे औरत हमेशा बिस्तर पे आखिरी में सोने आती है, जब पूरा घर भी सो जाता है तब भी उसका काम नहीं खत्म होता है, ये देख ले, वो देख ले, ये देख ले, गैस तो बंद नहीं। सो लिस्ट इज एंडलेस। और उसका अगर एक बही खाता, एक ब्यौरा दिया जाए तो एक महिला की मंथली इनकम कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए बनती है। रिसेंटली मैंने ये फैक्ट चेक किया है। अगर इसको बाहर की कंट्रीज से अगर आप एक्सेप्शंस बता दीजिएगा बस, मांगना क्यों कहते हो, मांग कैसे सकते हो? नहीं, मांगना मत, मांग नहीं सकते, बट यू डूइंग आउट ऑफ लव, केयर एंड इमोशन इन अ सिमिलर मैनर। आपका हस्बैंड भी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसका एक सही तरीका है एक अच्छे पार्टनर का कि वो भी हाथ पटाए, वो भी आपका ध्यान रखे, ठीक है। आप मेक श्योर करें कि आप थके ना हो बहुत ज़्यादा, आप कंफर्टेबल रहें। एंड अ वुमन इज ऑलवेज अ डूअर। कई बार आप ऐसे स्ट्रेंथ वाली पोजीशंस में देखोगे जहाँ पे मैन फेल कर जाएगा, बट अ वुमन कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पैशन, लव एंड अफेक्शन, कि शी विल कम एंड डू इट इन द फोर्स। मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी बता देता हूँ ये चीज़। आपने मिलियनेयर्स जितने भी देखे हैं ना, हाँ, 60% to 70% of the millionaires, they become millionaires only after marriage. Like your fate line, it completely changes after marriage. If you have a good partner, if you are loving, if you are caring, your fate line will definitely going to change. इसको आपको कहते हैं ना कि अगर आप कर्म अच्छे करेंगे ना तो अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिला है तो इसलिए आपने कर्म अच्छे करे होंगे। तो ये तो एक चीज़ है, तो इनको बता दीजिए कि वो ज़्यादा थोड़े से हमारे अपने जो कर्म को भी थोड़ा सा अच्छा बना ले, कि अच्छे लाइफ पार्टनर मिल जाए। हम वी अट्रैक्ट द काइंड ऑफ पर्सन वी आर विद इन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम जितना अपने साथ मेहनत करेंगे, अपने साथ जितना जुड़ेंगे, जितना सूक्ष्म रहेंगे, जितना अपनी कॉन्शियसनेस को अलाइव रखेंगे, ये सब चीज़ें डेड होती जा रही हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं। बॉडीज आर बीइंग ट्रेडेड लाइक एनीथिंग। बॉडी काउंट का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो ओवरऑल सैंटिटी होती है, ट्रस्ट होता है, रिलेशनशिप की जो शुरुआत होती है, वहीं पर लोग शुरू कर रहे हैं। आपकी बॉडी काउंट क्या रही है, आपकी बॉडी काउंट क्या रही है, वहाँ से अगर आप बात ही शुरू करो। आज अब डिवोर्स केसेस इसलिए भी होते हैं कि लोग जज करते हैं, यू आर
वो कहते हैं कि सांवला है, काला है, मैंने शादी कर ली, ये भी एक रीजन है डिवोर्स केसेस का। बहुत ही इरेगुलर इररेलेवेंट रीजन है, वन ऑफ है। ये भी रहता है। cannot एक अभी मेरे को मैं गूगल पे रीजन देख रहा था डिवोर्स का, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे सुन के। वो कहता है कि मेरे को जब लड़की मैं देखने गया, so she was having a makeup and she was looking very gorgeous। डिसेप्शन हो गया ना। तो वो अब क्या हुआ, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्शन की वजह से इशू हो गया। ये क्या हुआ, एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया कि तुमने बताया ए, तुम हो तो डी, अब तुमने क्यों किया मेरे साथ। वो ये नहीं कह रहे कि तुम काली हो मैं इसलिए तुमको छोड़ना चाहता हूँ। नहीं, अल्टीमेटली उसका धोखा है, वो एक्चुअली धोखा है। हाँ, जो आजकल जो है आपके इट्स अल्टीमेटली धोखा है ना भाई। आप किसी चीज को गलत पोर्ट्रे कर रहे हो तो धोखा तो उसको बोलेंगे ना, तो उसका जो रिपरकशन है, अगर उसका एक रिएक्शन आता है तो रिएक्शन गलत तो नहीं है। एब्सोल्युटली, वो लेजिट है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज आपके जितने भी एक्सटीरियर डेकोरेटर्स है, सॉरी मेकअप दिस वाज वेरी स्मार्ट, ये जितने भी आपके जो मेकअप आर्टिस्ट हो गए, मतलब ऑल वेरी आर इन वेरी ट्रेंड, जिसको आजकल अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ये। तो इन्फ्लुएंस जो है ना आपकी आउटलुक से, ठीक है, एक होता होगा, यू शुड ऑलवेज बी गुड लुकिंग, यू शुड ऑलवेज हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। तो वो आप ना इस चीज़ को भी, ये अपनी ऑडियंस के लिए जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स है, इसको भी आप मोटिवेट कीजिएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है आजकल, आपने तो बहुत सारे बन गए, उनको बोलिए आप कि इस चीज़ को मोटिवेट कीजिए, ऑलवेज हैव अ गुड हार्ट। और ये जितना ट्राई टू भाई पोर्ट्रे कि अगर आपकी बेटी, ये मैं माँ बाप के लिए भी बोल देता हूँ, एक ऑडियंस मैसेज है कि अगर आपका बच्चा, देखिए हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा जो होता है ना, वो सोने जैसा होता है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो। आप कोशिश कीजिएगा जब भी शादी में दिखाने जाए ना, उसकी जैसी लुक है उस लुक में लेके जाइए, आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना ही आप ऊपर पेंट करवाएंगे ना, ये कई बार बहुत गलत हो जाता है। आजकल केसेस आपने देखे ना कि आज रिश्ता हो गया, 2 महीने में रिश्ता छूट गया। डिवोर्स तक तो आजकल चीज़ें वैसे पता कब पहुंचती है, आजकल तो रिश्ते छूट जाते हैं वैसे 2-2, 3-3 महीने में। वो कहता है यार उस दिन तो देखी थी, बहुत बुरी थी, और मैं जब इससे गाड़ी में मिलने गया, ये तो सांवली निकली, घर आके बोलता है मम्मी मेरे को शादी नहीं करनी। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती लड़की की नहीं है, उसके माँ बाप की है। आप नॉर्मल जैसे है वैसे दिखाएं ना। आप पेरेंट्स की बहुत गलती हो गई है आजकल, बहुत गलती हो गई है। एक तो इतने इनसिक्योर स्पेस से आते हैं, बहुत मुश्किलों से इन लोगों ने बिल्ड किया, जो जनरेशनल वेल्थ वाले नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज है, बट उनकी इनसिक्योरिटीज जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई। तो वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं अपने बच्चों को, अपनी इनसिक्योरिटीज को पुश करते रहते हैं, जाने अनजाने। कैसे पुश करते हैं? फेयरनेस क्रीम नहीं लगाती, पार्लर नहीं जाती, ध्यान नहीं रखती, उपटन लगाया अगर, तेरी उम्र हो रही है, चेहरे का ध्यान रख, पिंपल हो रहे, बोल बोल के मोटी होती जा रही है, बोल बोल के सब कॉन्शियसली, अरे तेरा तो भलाई चाह रही हूँ, बट तुम कर क्या रहे हो? तुम इस इंसान का सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो लड़की भले ही कितनी खूबसूरत हो, कितनी टैलेंटेड हो, उसके दिमाग एकदम तेज हो कि वो बैठे और हॉल एकदम चुप हो जाए, बट उसकी माँ ने जो उसको बोल दिया ना, वो कभी नहीं जाएगा उसके दिमाग से। सो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, आई थिंक, एंड दैट स्टेज थ्रू आउट द एज। मेरी माँ, मैं 40 साल की हो जाऊँ, 50 साल की, बट वो जो बोलेंगी ना, वो मेरे लिए सच ही बोल रही है। वो पेरेंट डॉटर, पेरेंट सन रिलेशनशिप ही ऐसा है। तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी क्रिटिकल नाउ, और दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी हर छोटी से बड़ी बात का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं तो ये चीज़ बहुत बोलता हूँ, अब मैंने तो ये बोलना चालू कर दिया है। जब से मैंने केसेस सुने हैं ना, ये शायद आपके पास तक नहीं पहुँचते होंगे, जरूरत नहीं पड़ती ना डिवोर्स की, पहले हो जाती है ना। तो केसेस बढ़ रहे हैं इस चीज़ के भी। रिश्ता हुआ, छूट गया, जैसे आपको मैंने बताया, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद 5 साल तक शादी नहीं हुई, और उसके बाद वही लड़की वाला पता है क्या बोल देता है, ये लड़का ठीक नहीं था। क्या बोलेगा और अरे यार, आप किसी लड़के को बोल देते हो लड़का ठीक नहीं था, कितनी गलत बात है, जबकि गलती आप करते हैं। अब मैक्सिमम केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। इसलिए तो आप देखिए ना, मेकअप आर्टिस्ट जिस चीज़ के कलर करने के 100 रुपये होते थे, वो आज 1.5 लाख रुपए का एक आपका। आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर रोल है वो पर्सनालिटी को एनहांस करना है, बट व्हाट दे आर डूइंग नाउ इज क्रिएटिंग अ न्यू पर्सनालिटी, जो कि डिसेप्शन हो जाता है। तो ये जो भाई देखो, हर प्रोफेशन एक क्रेडिबिलिटी के साथ आता है और एक ऑनेस्टी से आपको उसको करना होता है। वो जिम्मेदारी आपकी ही है,
वो जो बंदा मेकअप करवा रहा है वो नहीं समझेगा। अरे रील्स आती है, रील्स में मेकओवर आप देख लो, कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आई मीन मतलब एटलीस्ट ठीक है इंसान को मत बदल दो। आप इंसान का आप रूप ही चेंज कर रहे हो ना। आप क्लाइंट के एडवाइजरी पे वो कर देते हैं ऐसा, बट नहीं करना चाहिए। हमारे अब क्लाइंट कई बार ऐसा माँ बाप भी बोल देते हैं लड़के के कि यार ठीक है थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी लेकिन सुंदर है, ले आ। वो वहां पे सेक्रीफाइस कर जाता है, लेकिन वो जो एक्चुअलिटी जब पता लगी कि यार कम पढ़ी लिखी भी है, उसका जो माइंड थॉट जो था वो अल्टीमेटली डिस्प्यूट क्रिएट होगा ही ना। एब्सोल्युटली। और अब एक कॉन्सेप्ट आ गया फेलिंग फास्ट का, ये पता आपको? फेलिंग फास्ट का कॉन्सेप्ट हमें तो अगर कुछ पता भी होगा तो हम तो आपसे सुनेंगे। फेलिंग फास्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको अर्ली इन द रिलेशनशिप समझ में आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ फिर भी चीज़ें नहीं मैच हो रही है, या लड़का अपने एंड से सारी कोशिशें कर रहा है फिर भी नहीं मैच, मेंटल माइंडसेट मैच ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ों से मेंटल माइंडसेट, रात में एक को एसी चाहिए, एक को नहीं चाहिए, सो ही नहीं सकते, कंपैटिबल ही नहीं है सोने में। एक खराटे लेता है, दूसरे को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में ही नींद आती है, कंपैटिबल ही नहीं है, ठीक है। कोई एकदम घर का पर्सन है, दूसरे वाले को बाहर ही रहना पसंद है। एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो है पाइल अप हो जाती हैं। तो लाइक कितनी चीज़ें बदल लोगे, कितना? सो यू डिसाइड टू फेल फास्ट। You, instead of going through the entire emotional, mental, physical, financial toil, you decide to cut it now. So that is, I think, ये एक sense of maturity आ गई है couples में, and you don't make it messy also. ठीक है, मैं किसी को परेशान, खुद भी परेशान नहीं होंगी, किसी को परेशान भी नहीं करूंगी। भाई शांति से अपना म्यूचुअल करते हैं, चलते हैं अपने अपने रास्ते। समरीश भाटिया, the famous YouTuber, I think he was dating for good 2-3 years, उसका डिवोर्स हुआ, बहुत शांति से, शादी के 2 महीने के अंदर ही हो गया था। पैसे वालों के ज़्यादा डिवोर्स होते हैं, मैंने तो देखा है। अरे अभी एक डिवोर्स का केस हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑडियंस हमारी सुन लेना आप इस केस को। बेटा शराब नहीं पीता था और जिससे शादी हुई वो डेली आधी बोतल पीती थी। उसने क्या किया, पता लग गया जी, इशिता जी, उसको पता लग गया कि इसने ऐसा काम चालू कर दिया है। तो माँ बाप को बुलाया, माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी तो शराब पिएगी, तू भी पीना सीख जा। हाँ, ये देखो क्या बकवास है। और उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट में क्या किया है लड़की वालों ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी है, FIR करी है, उसको थाने ले गए और लास्ट में बोल देते कि ये लड़का ठीक नहीं है। क्या क्या बोलेंगे इसको? मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे, इसको ट्रेडिशन बोलेंगे। उस लड़के को पता है क्या बोला जाता था कि ये आउटडेटेड है, इज नॉट मॉडर्न बिकॉज ही डोंट ड्रिंक। क्या 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 बोलेंगे अब इसको? ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है अब ये चीजें। तो आपने असेस नहीं किया ना ठीक से अपने पार्टनर को, ना उसकी फैमिली को, ना उसके चाल चलन। अरे नहीं पता, उसके माँ बाप को भी नहीं पता था, बाद में पता लगा। अच्छा, तो फिर भी वो उसका साइड ले रहे हैं। लड़की वाले को साइड तो अल्टीमेटली लेगा ना कि उसकी बेटी है। फिर तो कैसे, मतलब रैशनल कहाँ चला जाता है कि बेटी है तो खून करेगी तो नहीं साइड लोगे? सही उसका साइड लेना चाहिए, गलत का साइड खून भी कर दिया, खून करे जा रही है, खून करे जा रही है, गलत बात है। रैशनैलिटी और मोरालिटी एंड अल्टीमेटली एंडेड अप विद कंप्लेंट्स। एंड अभी पता लगा कि वो डिवोर्स का कुछ इनका जो चल रहा है। ऐसी भी चीजें भी सुनने में आती है कि भाई आपका लड़का शराब नहीं पीता तो आउटडेटेड हो गया। पर्सनल चॉइसेस की वजह से कोई आउटडेटेड या इनडेटेड नहीं होता, बट हाँ न्यूट्रल चॉइस होना चाहिए। और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन, ये अभी आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन के आजकल मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी आप अगर प्री टॉक कर लेंगे, शादी से पहले ही बात कर लेंगे अपने पार्टनर से, समझ लेंगे कि भाई उसकी प्रायोरिटीज क्या है। पार्टनर बताना ही ना चाहे कि मैं, उसको पता है पार्टनर को कि मेरे को तो शादी इससे करनी है, लेकिन बताना तो नहीं है कि आई ड्रिंक। तो आपने छल किया अपने पार्टनर के तो यही तो हो रहा है। तो फिर वो शादी टूटेगी, क्योंकि ये सब ना बेसिक टॉलरेंस नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। गलत का टॉलरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स में यहाँ पे अगर आकर के अपने बच्चों को करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज पेरेंट्स तो टेक कर होम, देन इट्स ओके। ये सब गलत चीज़ें हैं और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर वो खुद को विड्रॉ कर लें तो भी होता है, और खुद को अगर सही से प्लेस करें तो भी होता है। तो ब्राइड और ग्रूम को तो खुद को एजुकेट, पेरेंट्स को भी गलत का साथ नहीं लेना चाहिए कभी नहीं, कितना भी। लेकिन यहाँ आप केसेस ये होते हैं कि पेरेंट्स जहाँ पता है कि मेरा बच्चा गलत है तब भी उसका साथ लेते हैं। वो चीज़ भी एग्जैक्टली पैसे की तड़ी होती है किसी के पास, ज़्यादा पैसे की ही तड़ी होती है ना, तड़ी होती है। तभी तो डिवोर्स कैसे बोल दिया, मैं भी बताता हूँ, फोन करो एक भैया आना, स्टफ लाइक दैट। एग्जैक्टली। ये सब चीज़ों को अलग रखना चाहिए। और
अगर ऐसा डिस्प्यूट होता भी तो सबसे पहले अपने स्पाउस से बैठ के बात करो बिफोर ब्रिंगिंग इन पेरेंट्स ऑल्सो कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैड स्पोकन अबाउट और आई न्यू अबाउट इट एंड हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट. एक सेंसिबल तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए. हर प्रॉब्लम को आप अगर अटैक करके अप्रोच करोगे तो ज़रूरी नहीं उसका सोल्यूशन निकले. एग्जैक्टली. तो जो चीज़ें एक अच्छे बेटर कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती हैं वो फाइट से नहीं सॉल्व हो सकती. तो पहली अप्रोच आपको हमेशा प्रॉपर कंप्लीट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहिए. मैं भी ये बोलती हूँ जिससे भी बातचीत होती है मेरी कि कम्युनिकेशन इज द की विच इज़ अ वेरी गुड सेइंग एंड इट्स अ टॉप प्रायोरिटी फॉर एनी रिलेशनशिप एज अ मैटर ऑफ. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ मीडिएशन, जिसको मीडिएशन में भी तो ये होता है. मीडिएशन भी वो बात है आपका आपस में, जैसे मैंने बोला, मतलब वो आपकी इंटरनल इन हाउस मीडिएशन हो गई ना. हाँ. ये भी तो मीडिएशन ही हो गई ना. मैं बोलती वो सामने वाला मीडिएशन के अंदर सामने वाला समझाता है आपको, यहाँ पे आप यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. मैं बोलती हूँ कि मैरिज इज अ 2-handed राउंड सर्कल. ठीक है, जहाँ पे सिर्फ दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े, इसमें तीसरे किसी की कोई जगह नहीं है, चाहे आपके पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो या सिबलिंग हो. द मोमेंट आपने एक तो अपने दो लोग की बातें बाहर कहना शुरू करी फॉर फन या फॉर क्रेडिबिलिटी या कॉलर उचल करने के लिए, या आप गलत बातें अपने स्पाउस से बोलने के बजाय आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो भाई ये भूल जाओ कि वहाँ से आपको कुछ अच्छा सजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी किसी और के सुख में सुखी नहीं. जिस पे तो मैं ताली बजा दूंगा. ये तो देखा है मैंने, वो फ्रेंड्स की इंटरफेरेंस. और फ्रेंड्स दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस. उनका माइंडसेट अलग है, आपकी इक्वेशन अलग है. क्यों आप किसी थर्ड पार्टी को इंटरवीन करने की, आप बाउंड्रीज को सेट करना बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली. फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ भी. एंड बच्चों को पता होना चाहिए मदर को कैसे ट्रीट करना है फैमिली में. फादर को स्टैंड लेना चाहिए अगर बच्चा माँ को मिसट्रीट कर रहा है. इन सब चीज़ों से महिलाओं को प्रोटेक्टेड फील होता है. कभी कभी महिलाओं को अपने ही घर वालों से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं. तो अ मैन्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज़ अ वुमेन्स रोल. दैट इज़ ऑल दैट आई हैव बीन comprehended in my understanding over last 30 years. Let's see how it goes further. मैंने तो दिमाग में पूरा मेंटेन कर लिया है ये भाई. जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, सब कुछ पकड़ लो. तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी इतनी अच्छी चीज़ें मेरे तो माइंड में बैठ ही नहीं पा रही. मैं तो अभी दोबारा इसको रिकॉल कर रहा हूँ मैं. यार मैंने क्या क्या पूछ लिया और क्या क्या मेरे को आगे बताना है सबको जाके. क्योंकि सोसाइटी में देखते हैं चारों तरफ इस टाइप के केसेस फैले हुए हैं. मुझे लगता है ज्ञान की कमी है. एक बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ. इस्लाम में मौलवी साहब घर पे आते हैं, ये जो भी कहते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं रिलीजियस टेक्स्ट को. ठीक है, उसमें क्या होता है, लोगों को पता होता है कि धर्म सत्य एक जीवन कैसे जीना है. ठीक है, धार्मिक तरीके से. क्रिश्चियनिटी में एक पर्पस बना हुआ है कि संडे आप जाते हैं और संडे प्रेयर करते हो. ठीक है, सो एक देयर इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, देयर इज अ सेंस ऑफ कॉमनैलिटी. हमारे हिंदुइज्म में यू वुडंट सी अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. ठीक है, इवन सिक्स दे गो टू दीज गुरुद्वाराज रेगुलरली. देयर इज एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है बच्चे से लेके बड़े तक. बट हमारे हिंदुइज्म में हमें इतना सबसे पुराना धर्म, सबसे बड़े बड़े सनातनी. तो मैंने अभी एक एपिसोड किया था पॉडकास्ट में. हम कहते हैं कि हम सनातनी जो है वो क्योंकि हमारे बहुत सारे देवी देवता हो चुके, तो हमारे को अपना भगवान ही नहीं पता. तो मैं आपको भेजूंगा. कहते कि हर 5 साल में, उसमें मैंने बताया भी है कि ट्रेंड चेंज होता है भगवान का. तो आपको एक को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना. नहीं, भगवान तो चलो एक नहीं, ट्रेंड ये आजकल तो आप पार्टनर की बात कहते हैं, आप ट्रेंड उठा लीजिए. ये मेरा रिसर्च कहता है कि 5 साल में भगवान के ट्रेंड आप देख लीजिए ना. पहले कौन से भगवान ट्रेंड में थे. चल रहे हैं एकदम पीक पे. मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का. तो हर 5 साल में मतलब चेंज हो जाता है सब. बट मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस की, मैं भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही थी. मैं आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस की हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं दे आर वे बियॉन्ड देयर एज. ओके, उसमें सब कुछ दिया हुआ है. हाउ टू लीड अ लाइफ, हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू वर्क विद अ पार्टनर, हाउ टू ग्रो विद अ पार्टनर. बट और वो इतना वास्ट है कि जब तक हमें पढ़ाया नहीं जाएगा ना, उसके की पॉइंट्स निकाल के, उसका क्रक्स निकाल के आपको अगर स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ाया जाए तो हमारे तो कोई सिस्टम नहीं था. हमारे तो घर में पंडित जी आते थे, रैंडम कुछ मंत्र बोल के चले जाते थे. हमें कोई सिर पैर नहीं पता होता था, हम प्रसाद खाते थे, अपना निकल लेते थे. इंपॉर्टेंस है गुरु की. धर्म के साथ जीवन जीना कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हमें वो कुछ फंडामेंटल्स पता हो जो हमें बेसिक से ही सिखा दिए जाएं, जैसा कि धर्म में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो एक तो ये एथीस्ट का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा. बिकॉज आपको शुरू से इंट्रोडक्शन मिलेगा उन सारी चीज़ों का. एंड यू विल सी ये स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए. रैशनैलिटी है ना उसमें, लॉजिक है ना उसमें. इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ नोवेयर. तो हाँ, एकदम बेसिक उम्र से शुरू होना चाहिए. जहाँ बच्चा पढ़ना लिखना सीख रहा है ABCD के साथ, उसको सारा ज्ञान भी होना चाहिए अपने शास्त्रों का.
तो एक धर्म के साथ जो भी इंसान जिसने भी धर्म के साथ काम किया वो कभी गलत नहीं कर पाता है, कभी भटक नहीं पाता, उसके साथ मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इन लाइन ही फॉल करती हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है इसकी पर्सनल एक जीवित गुरु की पर्सनल कमी मैं खुद फील करती हूँ. मेंटर कहते हैं, मेंटर हमें बिजनेस में मेंटर्स लेते हैं ना हम लोग. मेंटरशिप जैसे हम बोलते हैं. बिजनेस में क्यों हम मेंटर्स लेते हैं? क्यों हमें अच्छे से करना है, हमें फेल नहीं करना है. तो क्या आपका बिजनेस आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्या आपका बिजनेस आपके पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के रिलेशनशिप से, बच्चे के रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं ना. तो आपको ज़िंदगी जीना भी सीखना होगा ना. और ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही आपको हर चीज़ सिखा सकें. कई बार हम लोग अपने पेरेंट्स को आउटग्रो कर जाते हैं. और आजकल तो हम लोग जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, हम लोग के पास ज्ञान है, डेटा है, एक्सेसिबिलिटी है, जनरेशन गैप भी जो अंडरस्टैंडिंग है. एग्जैक्टली. तो हम लोग पेरेंट्स को बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाते हैं. तो कई बार पेरेंट्स वो जनरेशन गैप नहीं समझ पाते, या जेनजी किस हिसाब से इतनी फास्ट फॉरवर्ड आ चुके हैं, या बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है जो नया बच्चा है वो भी नहीं समझ पाते कई बार पेरेंट्स, क्योंकि वो उनको ऐसा कल्चर नहीं मिला ना. उनका जो कल्चर था वो अपने आप में, मैं तो आज के कल्चर से बहुत अच्छा कल्चर मानता हूँ मैं सीरियसली. क्योंकि टाइम था उनके पास. वो तो अब रहा ही नहीं है. नहीं रहा नहीं है, हम लोग निकालना नहीं चाहते. रैप कर लिया खुद को. ये भी तो केसेस का कारण बन सकते. टाइम ही नहीं है. बनेंगे आने वाले टाइम में. आप रिलेशनशिप बिल्ड करने में आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रहे हो. इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों से नहीं होता है. आपको इंसान को एक इंसान में इन्वेस्ट करना होता है, अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपनी फीलिंग. मनी कम्स ऑलवेज एट द एंड. आई मीन इट्स इम्पोर्टेंट, बट वो इन सब चीज़ों के बाद. सो फॉर अ मैन, फॉर अ वुमन, इट इज़ लाइक हाउ शी इज़ फीलिंग इन द रिलेशनशिप. जब तक वो अच्छा फील कर रही है वो सबके लिए बहुत अच्छा करेगी. बट द मोमेंट शी स्टार्ट्स फीलिंग disrespectful, unheard, unseen, फिर she was like, अब तुम सब जाओ. But for a man, it is more about calculations. इसमें कितना खर्चा होगा, ये कैसे चलेगा, इसको कितना प्रोटेक्शन चाहिए होगा, इसके LICs का खर्चा क्या है. तो भाई जब आप सोचते हैं इतना पोल्स अपार्ट हो, तो आपको नहीं लगता दो लोग को एक दूसरे को समझने में वक्त देना पड़ेगा? That's the basic thing. Let's start from the basics, right? दूसरा मैंने तो एक और कॉन्सेप्ट भी देखा है मैंने, कि आदमियों ने लेडीज़ को, विमेंस को अपने साथ बिजनेस में अटैच कर लिया. कहीं अगर आपको लगता है डिफरेंसेस होने भी वाले हैं ना, वो भी बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं उससे. ये भी एक बहुत, बोथ आर अर्निंग, बोथ आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म. कई बार ना डिमांड्स बैलेंस आउट हो जाती है. ऑफ कोर्स रैशनैलिटी पता है ना वाइफ को चीज़ों का. Exactly. पहले तो आप बहुत बार देखा है, ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दूसरे की इनकम के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है. पहले के लोगों में नहीं होता था ना आइडिया. हाँ. और अच्छा था वो. आजकल तो आदमी सब बता देता है ना. दे आर लिविंग टुगेदर लाइक रूममेट्स. कुछ नहीं पता किसी को किसी के बारे में. तो और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है. इतनी एक्सपेक्टेशन है ठीक से रहे, अच्छे से बातचीत करें, मेरे माँ बाप को इज्जत करे, अपने काम करें, मैं अपना काम करूँ. इतने पे अब आ चुके हैं, वो भी नहीं मेंटेन कर पा रहे. तो बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि हमने देखा वाइफ्स को आपने बिजनेस में ऐड कर लिया. मेरे को इस चीज़ों में 2 फ्लॉज दिखते हैं. नंबर 1, एक तो आपकी इनकम जो डाइवर्सिफाई हो सकती थी, 2 स्ट्रीम्स हो सकते थे, उसको आपने मर्ज कर दिया एक में. इट्स लाइक खेत उतना ही है, बट ज़्यादा बच्चे पैदा करके सबसे आपने वही करवा रहे हो. तो क्या, व्हाट्स द पॉइंट? अल्टीमेटली तो ग्रो करना ही है ना उनको. हाँ. व्हेन यू फील एज अ फैमिली मेंबर, जो आप कहते हो कि फैमिली मेंबर है मेरा, तो वो आपका इनकम मेंबर भी तो होना चाहिए ना. हाँ, इनकम मेंबर होना चाहिए, बट लाइक अगेन आई एम कमिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट कि भाई अगर इफ अ महिला इज अ गुड HR, अब ज़रूरी नहीं वो आपके यहाँ के फंड्स मैनेज कर सके, या आप उसको ला रहे हो. तो मेजरली वुमेन आर इन द CEO ऑफ मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, ट्राइंग टू मेक श्योर थिंग्स आर रनिंग. बिकॉज अगेन वुमेन, फेमिनिन फ्लूइड, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज रनिंग. सो यूजली महिला को वही रोल मिलता है, ऑपरेशनल साइड पे जाता है, विच इज अगेन अ वेरी हैवी लिफ्टिंग. घर में भी देखो तो औरतों को हैवी लिफ्टिंग करना पड़ता है. सारा मेजर सोचने का काम एग्जीक्यूशन में आदमी मदद कर देता है. डांटना, लड़ना, नेगोशिएशंस में बहुत स्ट्रांग होती है लेडीज. क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है ना, पता है क्या चाहिए. सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर फोकस्ड. नंबर 1. दूसरी मुझे एक चीज़ ये लगती है कि अगर हस्बैंड वाइफ सेम बिजनेस में आ जाते हैं, द इंटायर लाइफ बिकम्स वर्क एंड वर्क बिकम्स लाइफ. पर्सनल स्पेस खत्म हो जाती है. दे बोथ आर क्रेविंग इट इंटरनली, बट लड़ाई तो नहीं होगी ना. लड़ाई अब कम चैनलाइज होगी सर. अब घर की बातें निकलेंगी बहस में ऑफिस के थ्रू. तुमने इसको क्यों हायर किया मुझसे बिना पूछे? वहाँ पे इंटरव्यू था तो बताया क्यों नहीं?
तुमको 1000 बार एक ही बात तो बताना चाहिए ना बताना तो चाहिए। सो नाउ यू हैव मेड इट पब्लिक, ऐसा मुझे मेरा मानना है। जो चीज़ें घर में हो सकती थी वो बाहर होती है, और अब वो भी वुमन इन पावर है, वो भी सीईओ ही होगी या सीटीओ जो भी होगी, और आप भी अपने सी सूट में ही होंगे। तो अब वहाँ पे एक एनर्जी क्लैश ऑफ एनर्जी आता है पब्लिक डोमेन में, अब वहाँ पे आदमी शांत ही हो जाता है क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी है। तो भाई अल्टीमेटली आजकल लॉ का काम क्या है? आजकल लॉ का काम तो आदमी को शांत कराना है ना। रिस्की तो है। तो मैंने तो एक बहुत बढ़िया सा आपको स्टाइल बता दिया आदमी को शांत कराने का। आदमी ऊपर उठ ही नहीं सकता ना, कहते हैं बीवी को वो बना दे, कंपनी के साथ, कंपनी में डायरेक्टर बना दो, तुम्हारा झगड़ा ही नहीं होगा। देखा है मैंने, तो कॉर्पोरेट के अंदर हो रहा है ये। काफ़ी फ्रीक्वेंट है, काफ़ी रैम्पेंट है, और ठीक है, महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, दे नो हाउ। मैंने भी बना रखा है। आई नो मैंने भी बना रखा है, मुझे पता है। दे नो हाउ टू मैनेज इट, एंड उनको अब कंप्लीट क्लैरिटी भी है फाइनेंसेस की। एग्जैक्टली। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो अगेन, बट मैनेजर बने या डायरेक्टर बने या ना बने, अगर हस्बैंड को बैलेंस आउट करना आता है, वाइफ को इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस, खाली देना नहीं लेना भी आना चाहिए। क्योंकि बहुत फैमिलीज में मैंने देखा है, मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ, जो एल्डरलीज हैं, इतना दिया है, सालों साल दिया है कि कंप्लीटली ड्रेन हो चुकी हैं, खुद की सेल्फ वर्थ खत्म हो चुकी है, सेल्फ एस्टीम है नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बच्चे बड़े होकर के अगर चले गए शादी करके, कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, खुद को एकदम फिनिश कर लेते हैं सर्विस में। ऐसी भी लेडीज होती हैं, हम सबने देखा है, अपने अपने परिवारों में देखा है। तो यहाँ पे पार्टनर्स को दे हैव टू मेक श्योर कि भाई बैलेंस आउट बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की, एंड मोस्टली आई थिंक men have problem with they are not consistent ये and balance. आपसे तो मैं समझता हूँ कि 1.5 घंटा तो मेरे लिए बहुत कम है। मेरे को इसका एक पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। मैं आज इनका थैंक्स नहीं बोलूँगा, और मैं अपनी पूरी टीम को यहाँ पे बोल भी देता हूँ, आज थैंक्स इसलिए नहीं बोलेंगे कि मेरा ये पार्ट अधूरा है। मुझे बातें बहुत सारी आपसे करनी है। अभी तो मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी, 3 पेजेस हुए हैं मेरे पास, 10 पेजेस की लिस्ट है। मैं पॉइंट्स बना के लेकर आया था। मैं सोच रहा हूँ कवर कैसे करूँ आपसे, मैं पूछूँ कैसे। सामाजिक इशू है, सामाजिक इशू, और बॉम्बे से इस बार तो बॉम्बे आना पड़ेगा लगता है। तो आज इन लीगल एक्सपर्ट के साथ नो थैंक्स, क्योंकि पार्ट 2 आएगा बहुत जल्दी आपका। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक हमारी एक ऑडियंस के लिए, आज की जेनजी, आज की जनरेशन, एजुकेटेड जनरेशन, या जिन लोगों को आने वाले टाइम में मैरिज करनी है, या जो न्यूली मैरिड है, एक मैसेज, आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दीजिए रिगार्डिंग इंटरवेंशन, रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, कि क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इंटरवेंशन के, टेक्नोलॉजी के, जिसकी वजह से ये अपने परिवार को आने वाले टाइम में बसा सके। और एक थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑडियंस के लिए लव मैरिज के ऊपर, जैसे आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी कि ये कुछ नहीं होता। हाँ, इट्स तो ये एक हिंदी में मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा, ठीक और लेकिन आपको बुरा मत माना, मैं थैंक्स नहीं बोलूँगा। ये पार्ट 2 पेंडिंग रहेगा। हम वकीलों को थैंक्स की आदत नहीं होती। वी हैव अ थैंकलेस जॉब। सो ये हिंदी में चाहूँगा मैं आपसे। अपने व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, सबसे बड़ा कोई फाइनेंशियल डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेंगे, वो आपका घर, आपकी गाड़ी नहीं होगा, वो होगा आपका पार्टनर। आपका पार्टनर डिसाइड करता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी कैसी रहने वाली, क्योंकि फाइनेंसेस को हम सबसे इम्पॉर्टेंट, सबकॉन्शियसली वो सबसे ऊपर हो, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फाइनेंशियल डिसीजन होता है आपका पार्टनर। तो ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना है, बट इसमें ये नहीं करना है कि अपनी ज़िंदगी बता देनी है कि सोच ही नहीं पाए। डोंट बी इनडिसिसिव, बी प्रैक्टिकल, डोंट बी ब्लाइंडेड बाय लव, बिकॉज लव इज इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ एन इमोशन। जैसे गुस्सा आता है तो चला जाता है, ठीक है, आक्रोश आता है वो चला जाता है, वैसे ही प्यार भी एक समथिंग, एक इट्स एन इमोशन, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम योर हार्मोन्स, ठीक है। जब हम किसी के करीब होते हैं, जब किसी के सानिध्य में होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फीलिंग आता है। वो फीलिंग्स के बेसिस पे कभी भी कोई डिसीजन मत लें। टेक अ स्टैंडर्ड, secluded, practical decision, and always converse with your partner कि भाई on major issues such as family, raising a child, how many kids, what is going to be financials, international trips रखनी नहीं रखनी, ये सब बेसिक्स हैं आजकल अरेंज मैरिज सेटअप में। लव मैरिज में तो आप लोग ब्लाइंडेड होते हैं, और जो ब्लाइंडेड नहीं होते हैं कपल्स, जिनको एक प्रॉपर कमराडरी समझ में आ चुकी होती है, देन प्लीज़ गो अहेड, डोंट वेट फॉर एवर टू गेट मैरिड।
If you have waited forever, the time will make you wait more, because chances of getting a suitable match धीरे धीरे कम होने लगता है. That is one thing. Always set your boundaries with people around you. Like I said, marriage जो है वो एक closed hand circle होता है. 2 लोगों से ज़्यादा तीसरे की कोई जगह नहीं होना चाहिए. जो भी disputes हैं उनको openly communicate करो. पसंद आए तारीफ करो. Like women need reassurances, men need praises. Men need a lot of comfort coming from their wife in terms of praises, like in terms of appreciation, in terms of valuing कि छोटी छोटी चीज़ों को भी आप value करेंगे, they will always make sure that you are taken care of. So this is very important. And third, the most important thing is balance it out. Work is important, but it is not everything. So you need to set your priorities right. Having a right priority makes sure, and it's a sure set formula of a happy marriage. So that is what. And ultimately no intervention, from no families. intervention at all. From families or friends. ये or तो relatives. भूल ही जाना इंटरवेंशन. किट्टी पार्टी में पहली बात तो पर्सनल लाइफ डिस्कस करना. अरे सारी मैं इशिता मैं अपनी वाइफ के साथ ना गया हुआ था किसी काम से, तो उसने बोला कि लंच करना है. मैंने कहा घर पे करेंगे. कहती करना है. चांस की बात है वहाँ पे किट्टी पार्टी चल रही थी. पूरी गॉसिप सुन लिया आपने. अरे मेरा तो इंटरेस्ट, मैंने कहा तू चुप हो जा, तेरे से घर जाके बात करूंगा. मैं आधा घंटा मैं सुनता गया, मेरे को तो मजा आ गया. ये होती सारी दिन में. हाँ दिन में होंगे ऑफ कोर्स. वो एक्चुअली डिस्काउंट दे देते हैं ना ये. अच्छा. वो इनको डिस्काउंट की आदत होती है ना. वो रात को तो पैसे लगेंगे 3,000 4,000, और लंच टाइम में तो कहते हैं ना कि वो सब डिस्काउंटेड है, वो सब क्राउड भी कम रहता है. नहीं, अरे इनका तो ज्यादा क्राउड हो गया अब. रेस्टोरेंट तो सारे लेडीज ही चला रही है, विमेन ही चला रही है. किट्टी पार्टीज जिसको आप बोलते हो. अगेन इनिशियली तो ऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल द गॉसिप्स, मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ये किया. मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन 2-4 को तो डिवोर्स हो गए होंगे. क्योंकि वो अल्टीमेटली जिस हिसाब से वो बातें कर रहे थे, वो मैरिज सस्टेनेबल थी नहीं. नहीं करना चाहिए. आपने बहुत सही चीज बोली. नहीं, पहले तो पर्सनल लाइफ बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए. और जिन लोगों का अमूमन ज्ञान कम होता है या क्षमता नहीं होती चीजें प्रोसेस करने की, ओनली मेरी अंडरस्टैंडिंग, ओनली वीक पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल. नहीं, ये ट्रेंड है. बट दोज हु हैव सम सब्सटेंस, ये ट्रेंड है. अदर पीपल. 4 लेडीज जब बैठेगी ना और एक साइलेंट है, तो उसको भी कुछ ना कुछ बोलना कर है. देंगे. वो बोलेगी यार ये तो बोलती नहीं है, इसको क्यों बुलाया गिट्टी में. तो उसको बोलना पड़ेगा. ये होता है, ये ट्रेंड अब ऐसे ही चलेंगे. बस इंटरवेंशन और ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो. फ्रेंड को कुछ नहीं बताना. जो चीज़ है आपस में, जैसे इशिता ने बताया, अपनी एक बाउंड्री सेट करो. और मदद चाहिए तो रीच आउट टू अ प्रोफेशनल इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल. गलत डॉक्टर, कान में दिक्कत है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे तो ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा. रिलेटिव्स भी कई बार क्या होता है कि वो रिलेटिव्स को ही बुला के ना वो आपके एपिसोड को खराब ही करेंगे. अपने जान में तो अच्छा ही करते हैं, बट वो अपने जान में नहीं होता ना, उनको एक्चुअली सिनेरियो नहीं पता होता. ऊपर से. सो या टेक इट क्लोजली, टेक इट वेरी सीरियसली. अपने पार्टनर्स के इमोशंस का पूरा ध्यान रखो एंड जस्ट मेक श्योर नथिंग गोज रॉन्ग. और हाँ, जस्ट कन्फेस. अगर कोई गलती हो भी जाती है, हम इंसान है ना आफ्टर ऑल, गलती अगर हो भी जाती है, इतना ट्रस्ट हो जाना चाहिए 2 लोगों में कि आप कन्फेस कर सके एक दूसरे को. सॉरी बोलना सीखो. सॉरी बोलना सीखे. कन्फ्रंटेशनल होए. कुछ परेशान कर रही है बात तो बैठे मत रहे, बोले. कन्फ्रंटेशनल होए. गलती हो जाती है तो खुद जाके कन्फेस भी कर दें. उससे रिलेशनशिप और इंटैक्ट रहेगी रादर कहीं और से पता चलने से. और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको. मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशन सारे वाले सब सुन रहे होंगे. ये इनका तो प्रोफेशन है, मेरे को बाद में पीटना मत. सो इशिता, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा. स्पेशल थैंक्स. स्पेशली आपका जो भी हम लोगों ने नॉलेज ली है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपने दी है हमारी ऑडियंस को, ये कोई भी मतलब इट्स नॉट ईजी टू गेन द एक्सपीरियंस. या और कितने लोगों की लाइफ बनेगी इससे. कितने लोगों की लाइफ जो खराब हो गई थी, कितने लोगों की लाइफ सुधर जाएगी इससे. क्योंकि कहते हैं ना, वो ज्ञान ना, एक छोटी सी चीज़ भी, आपका एक छोटा सा ज्ञान, एक छोटी सी नॉलेज आपकी लाइफ में चेंज लेके आ सकती है. नॉलेज को प्रोसेस करके उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करना. तो आपने तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी है. और ये मेकअप के ऊपर, और मेरे को एक लास्ट चीज़ मेरे को मेकअप के ऊपर और बता दो. मेरे को ना उस बच्चे बेचारे पे बहुत दया आती है. तो ये एक चीज़ बता दीजिए आप, ये जो हमारी मेकअप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, कि
portray only those things which is आप थोड़ा बहुत चलता है, मतलब इतना ज़्यादा आप इसको आप ये ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, आई थिंक दैट इज इनकरेक्ट. एब्सोल्युटली. मेकअप हमेशा औरतें पहनती थी जस्ट टू enhance the beauty beauty, कि and beauty is an exactly, important factor exactly. in the society. ठीक है, we look down upon or we look up upon, and बहुत ज़्यादा मेन साइड से भी ड्रिवन है ये इंडस्ट्री. ठीक है, बट या जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी जितनी भी मुआज है, मेकअप आर्टिस्ट को मुआ कहते हैं, ओके, ड्रेस आर्टिस्ट को दुआ, things like that, shortcut. I call it as an exterior decorator. Exterior मतलब decorator. जैसे हमारी जो walls है इस पे पेंट होता है ना, so it's all about painting your face with a white color. Okay, makeup is about the entire body now, by the way. मतलब जो मतलब as a layman what we feel. Okay, so yeah, जैसा कि मैंने बोला, हर चीज़ में एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, एंड सेंस ऑफ पता होना चाहिए कि कहाँ तक. सेट योर बाउंड्रीज भाई, डोंट चेंज द पर्सन Exactly. completely so that it ends up giving a deception of something else. Usually होता है कि मैरिजेस में ब्यूटिशियंस आती हैं और it's a different girl No, or no, together. after अरे आप मैरिज तक तो चीजें पहुंच ही नहीं पाती ना आजकल. इसे तो प्रॉब्लम तो ये हो गई ना. टॉकिंग स्टेज ही रह जाता है. टॉकिंग स्टेज के बाद वो थोड़ा सा एक स्टेज आगे बढ़ता है, उसके बाद वो जैसे जब मिलना जुलना होता है तो ये केसेस आते हैं सुनने में. आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते एज अ प्रोफेशनल. हाँ, वहाँ शादी हुई नहीं, वहाँ तो हुई नहीं ना शादी. वहाँ नहीं पहुँच. वो भी इट्स इक्वल टू डिवोर्स. हाँ, जो सेटबैक मिलता है दोनों पार्टनर्स को, वो वैसा ही मिलता है. सेटबैक टू द पार्टनर्स एंड टू द पेरेंट्स. पेरेंट्स आल्सो, कि सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ अचानक ठीक था, सब कार्ड वो पता लगता है कि फंक्शन हो गया जी, रोका हो गया, जैसे होता है आजकल. रोके में भी बहुत सारे पैसे लग जाते हैं. मतलब वो कहते हैं ना, जैसे एक शादी हो, पहले तो क्या होता था, एक शादी होती थी, अब एक होता है रोका सेरेमनी. रोका सेरेमनी इज इक्वल टू शादी. एक उसके बाद एक शादी के अंदर ट्रेंड है कि एक मेहंदी होगी, हल्दी मेहंदी तिलक. हल्दी मेहंदी होगी, वो भी अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है. रात को कॉकटेल होगी, मॉर्निंग में फिर वो दोबारा एक कोई पार्टी होगी, थीम पार्टी होगी, शाम को गोटी का होगा, और थर्ड डे जो है वो शादी होगी. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. सब में फंक्शंस होते हैं. ये बेसिकली पैसे शोइंग ऑफ है. एक्चुअली मैरिज तो सप्तपदी से होती है, जो 7 फेरे लेने हैं. वो अंबानीज ने ट्रेंड बना दिया. और हिना का तो अपने यहाँ कल्चर ही नहीं था. इट्स एन अरेबिक ट्रेंड, बाय द वे. मेहंदी इज नॉट अ हिंदू कल्चर, इट्स अरेबिक कल्चर. हम लोग के यहाँ तो स्टैंपिंग होती थी रेड कलर से, वो है हमारा ट्रेडिशन. वो जो बिंदिया बनती थी, वो हाँ, बिंदिया बनती थी, और सांचे आते, उसको आप डुबो के लगाते थे. अभी भी पुरानी दिल्ली में लगते हैं वो मरून कलर का. वो था हमारा ट्रेंड. हिना कभी भी वी नेवर अडॉप्टेड इट, सो हमने उसको एज अ पूरा फंक्शन ही बना दिया. वो हमारी शादियों का एक एसेंशियल हिस्सा है. मेहंदी वाले आते हैं, 50,000 1 लाख रुपए में मेहंदियाँ लगाते हैं. सो ऑल ऑफ दैट हैज़ कम अप. ठीक है, कितना भी ऑथेंटिक रहे, जितना रियल रहे, जितना खुद को जाने, जितना सिंपल रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग. एग्जैक्टली. वो कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी. अब तो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज बेस्ट. अब मैरिज के अंदर तो हमने कह दिया लॉन्गेविटी इसके अंदर तभी आपको मिलेगी. इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो नहीं मिलेगी. तो आप कब कर रहे हैं सेकंड एपिसोड? जल्दी करेंगे. और ऑडियंस के लिए मैं बता देता हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे से ज़रूर क्वेश्चन पूछिए. कोई आपका इशू हो, इशिता आपकी ज़रूर हेल्प करेगी इसके अंदर. इशिता प्लीज़, आई विल रिक्वेस्ट यू कि ये जो भी हमारे कमेंट्स आएंगे ऑडियंस से, प्लीज़ ट्राई टू हेल्प देम मैक्सिमम. Absolutely. If you allow, I can just drop my email ID also. Yeah, please. So if you want to reach out for any sort of help or any direction, you can reach out to me, ishita@fathomlegal.com, and this is where you'll get a very prompt आप स्पेलिंग बता दीजिए Fathom Legal. Ishita, ISHITA @Fathom FATHOM legal LEGAL.com. So this is where you can reach out to me directly. ऑडियंस के लिए ऑल द बेस्ट. कोई इशू आए, इशिता बैठी है. चलो, टेक केयर, बाय बाय. ऑडियंस, बाय.